going to be out there on the 10th of June. Filmmaking is a very strong and very difficult process. Making a film is one zone, and then releasing a film is another zone itself. So congratulations to everybody now that you've got a release date. It's going to be out there. I know heart and soul has been put into it. So we've got a few producers. It's produced by Shailesh Singh, Madan Paliwal, Sutappa Sikdar, and Shailaja Kejriwal. So just a big round of applause for getting it out there. And now we are at this stage where we will show you what you all have been waiting to see. As is custom, I don't like talking too much before the trailer. So I would like to actually show you the trailer, and then we talk about all the in this kind of cinema. Jo har bari, actually, when I saw Drishyam, I remember I enjoyed it more the second time I saw it, because that bit in the end was fantastic. And that's why I would like to invite this gentleman on stage who just knows how to make cinema look very real, very gripping. The editing is always fantastic, keeps you in a bit of a loop. Nishikant Kamat ke liye taaliyan ho jaye. और एक माइक भी दे दो सर को. थैंक यू सर. एंड यस, लाइक आई सेड एवरी टाइम, आपने बहुत हार्ड जिंदगी सर महसूस की होगी. इतना रियलिस्टिक हर चीज दिखाते हैं. एंड you just somehow manage to portray it not like a film. When you're watching your films, it looks like this is a part of life. It's just happening out there. There's a camera जो by mistake वहाँ पे लगा दिया था, and all the performances are happening. But that's not the way it is, because I know you're somebody who shows the scenes very well also. You're a fantastic actor, so you showed across like that. So what is the thought process that goes behind a film that you always make, which looks so real? Good evening, everyone, to start with. I wouldn't know exactly, because I've always followed my instinct while making a film, and tried to stick into some particular zone. Also tried to try different genres. I've never tried to go into one zone, but somewhere it has been how I would like to watch a film. That automatically reflects in the film, I guess. And reality maybe comes natural to me is because our upbringing is very middle class. I've come from a very middle class background, so reality comes very easily to me. Probably that is the reason. And a bit of theatre background, so probably performances also come easily. That's about it. Whenever somebody has a theatre background, they're very strong with scripting, editing, very important. I think a film can be lost in an edit. Performances अच्छी हो जाएं, लेकिन उसका edit अगर सही नहीं रहता है. So I hear you're very hardcore with, like most directors are, but you're very particular about that also. You constantly go back and forth, back and forth, back and forth. So this perfectionism is बचपन से ही? No, two things. First of all, I've got a great editing team. Arif Sheikh, my editor, is a very fine editor. And also, in fact, I can become a problem for him because I used to be an editor before. So I've spent first 5 years of my life editing. So probably... so do you let go when you're there? You let him do his work? No, 100%. Because he's such a fantastic editor, I generally don't. Only few things if I feel I'll suggest, but it's all his, maybe. Now, this film was, it's been made for a while, and it's the process, like I said, picture banana to bahut sare log bana dete picture. But the whole, the relief of it, coming out, every time is it new for you, or sometimes do you take it for granted, and then when it does come out, you're saying, oh my God, because a film release, now that I've seen the other side also for a long period of time, I feel, yaar, picture banana bahut dangerous kaam hai. No, I mean, every picture has a process. It goes through the entire procedure of एक कहानी जन्म लेती है, लिखी जाती है, फिर actors lock होते हैं, producer आते हैं, और finally picture shoot होती है, बनती है, edit होती है, release होती है. Release के एक अलग paraphernalia से. तो ये procedure जब, this is my 8th film, so first 3-4 films I used to feel के, it's too long, it's never ending. But now probably you start living with it. Because in fact I've been lucky, I've made 4 films in last 2.5 years. So that has been एक फैक्ट्री खड़ी कर दी है. अभी तो आपकी फिल्म स्टार्ट हुई है, अभी तो प्रमोशन पूरे बाकी है. अभी 1 महीने के लिए नॉन स्टॉप एवरीडे कुछ ना कुछ आपको करना पड़ेगा. बट आपके साथ एक ऐसे एक्टर हैं जो कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं दुनिया भर में कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं. Whenever I see him, he's now so cool and coming like a Buddha. Even what he's wearing today, I like to call, I use great very rarely with actors, but he is great. Irrfan sir, would you please come on stage? शुक्रिया जनाब, थैंक यू सो मच. नमस्कार नमस्कार नमस्कार. सर ये प्रोसेस ये तो जी लेते हैं, जैसे कि आगे पीछे चलते रहता है. पहले वो थोड़े से नर्वस होते थे, पहले वो निकलते थे, लेकिन आपके लिए कुछ ना कुछ कंट्री में कुछ ना कुछ जगह पर एक पिक्चर अगर रिलीज हो रही होती है, हाउ इज इट दैट एक्साइटमेंट? यस, दिस
is probably a dual excitement, and we'll come to that, how it's a dual excitement for you as well. But when you see a film like, first of all, congratulations on Talwar. I think a Thank big you so round of much. applause for Talwar. I think it was one of the finest films last year. I remember standing here on stage when you were also there, and it wasn't promoted that much, but my God, it just kept on and on and on. So your choice of films, whether it's Piku, whether it's a Talwar, whether now it's a Madaari, it just gets better and better. What is that formula that you managed to do so well all across the world? Actually, you know, Abhi bhi I'm the beggar, I'm not the chooser. I'm still, you know, whatever comes in your way, you want to, the script should ring something inside you, you know, it should do something to you. And then you know, try to see whether the people will be engaged or it will be an indulgent film. I sometimes do indulgent films, but, you know, I keep a balance, you know, because you have to survive in the market also. So this is a film which was very, subject was very close, and it had something, you know, simple story, but the emotion was so powerful. And, you know, we developed, and then we were looking for somebody, Shailesh and Shalja and Shudapa, that we find some director, and which, you know, which can feel what it is. और निशी ने पहली बार पढ़ी, and it was like, you know, as if he was there from the beginning. And that's बड़े what we were इन्वॉल्व रहते हैं हर चीज में. निशिकांत कामत सर के बारे में कुछ एक लाइन बताएं. जब इंटरेक्शन कैसे रहता है? सब लोग बड़े ब्रूडिंग टाइप रहते हैं, मुझे तो ऐसे लगता है. ब्रूडिंग अगर आप बात करोगे तो अब मतलब कुछ डांट पड़ जाएगी आपको. अच्छा. लेकिन हमेशा निशी के सेट पे जो है माहौल बिल्कुल मेडिटेटिव होता है. इट्स लाइक सब लोग जो है जोन में है, एंड ही इज कॉन्स्टेंटली, यू नो, इन अ जोन, एंड विच ऑल्सो, यू नो, इट हेल्प्स अ लॉट. लाइक अभी हम गाना शूट करके आए, एंड हमें इन्होंने रखी 2 बजे की शिफ्ट हैदराबाद में. अच्छा. एंड मेरी हालत ख़राब हो रही है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि यार कैसे करेंगे शाम तक अभी गाना. अभी 2 दिन पहले. अच्छा अच्छा. एंड कट टू कट करना चाहते हैं हर चीज. नहीं, वो आई थिंक ही रिलाइज ऑन व्हाट हैपेंस देयर. लाइक इस पूरी फिल्म के अंदर हमें पता नहीं था क्या होगा. यू नो, शूटिंग करते वक्त जब सेट पे आते थे तो इनका भी दिल धड़क रहा होता था, मेरा भी धड़क रहा होता था कि यार किस डायरेक्शन में जाएंगे हम. बट देन दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग प्रोसेस व्हेन, यू नो, व्हेन यू लीव थिंग्स टू हैपन, एंड व्हेन दे हैपन, यू नो, it's a pleasure. Did you also leave it to be because you knew that he was around and Jimmy Shergill is around? No, I was blessed with such great actors around. I mean, he's one of the finest in the country, and it was such a great pleasure, honor to work with Irrfan Saab again. We worked like 7-8 years back in Mumbai Mere Jaan. After that, and most importantly, you know, it was much easy to interact and understand, because the understanding somewhere, I think so, we are similar in understanding scripts and everything. And nothing to say about performances. I mean, मेरे को याद नहीं है कि कभी डायलॉग के लिए रिटेक हुआ है. That never happens from that end. कभी सिर्फ हाँ कभी लगा सर थोड़ा ऐसा करेगा वैसा करेगा. But he used to think so much about the character before coming on the set, and that was amazing. I mean, the detailing he used to go into, right from his costumes to everything. In fact, we have a child artist, 8-9-year-old, 7-year-old. We were shooting in Jaisalmer, Rajasthan, and when he came for the shooting, Irrfan saw the kid and he said कि नहीं यार, ये अगर धूप में इतने दिन से चल रहा है तो काला होना चाहिए. हाँ उसको यहाँ tan होना चाहिए. And he personally took the makeup thing and, you know, tanned the guy and all. So that's the level of interest he takes in a film, and it's a great honor to work with such a person. So you are saving more money also, sir, because सर you're चक्कर producer. ये है कि हमें मजदूरी करनी पड़ती है. हम नहीं चला सकते ऐसे काम ना कि थोड़ा लीपा पोती की और आके कुछ भी लाइनें बोल दी. हमें थोड़ा मेहनत करनी पड़ती है सर. नहीं, वो तो मेहनत हमारा काम भाई. हमेशा मजदूरी बना रहेगा. बट इट्स अ फन. But now added pressure on you. आप producer भी हैं, तो you know now you got another name attached with it. Your सही wife is टर्मिनोलॉजी there. है. मतलब मैं प्रोड्यूसर, मेरा सिर्फ जो योगदान है प्रोड्यूस करने का वो इतना ही है कि हमें लगा था कि ये फिल्म जो है इसका स्ट्रक्चर ऐसे सीधा सीधा समझ में नहीं आएगा कॉर्पोरेट को. उनको जो है कन्विंस करना मुश्किल होगा. तो शैलेश साहब आए, एंड देन हमने थीम अरेंज करना एंड प्रोजेक्ट को डेवलप करना, वहाँ तक ही था मेरा. उसके बाद मैं पीछे हूँ, बाकी सब इन्होंने और इनकी टीम ने संभाला है. इनकी कहानी तो हम थोड़ी देर में सुनेंगे, लेकिन another actor who I feel I think he is one of the most underrated performers, but one of the finest performers. और ये आज भी वैसे ही लगते हैं जैसे वो 15 साल पहले लगते थे. ये राज मुझे पूछना जरूरी है जिमी शेरगिल साहब के लिए. इनके लिए तालियां हो जाए. And he has evolved as an actor, fantastic, you know. He was always brilliant, sir. थैंक यू जी, गुड इवनिंग. जिमी सर, लेकिन ये बताएं सर, मैं आपको 10 साल से देख रहा हूँ सर, वैसे का वैसा, स्किन भी वैसी है सर, स्माइल भी वैसे, एवरीथिंग इज द सेम. प्लीज कैन यू टेल अस व्हाट डू यू ईट और नॉट ईट? टेंशन खाता हूँ. बहुत टेंशनें खाता हूँ, तो आई थिंक
उसी की वजह से। नहीं, you're being very modest. सुबह से शाम जिम, no eating after 4 o'clock in the afternoon only, I'm sure. ऐसा कुछ है सर आपका रेजीम? बोला सर टेंशन खाता हूँ, सिर्फ टेंशन खाते हैं? सिर्फ टेंशन खाता हूँ और पीता भी। पानी। टेंशन खाता हूँ, टेंशन पीता हूँ। A gentleman here who again like I said is a powerhouse of talent. इनको देख के ऐसे ऐसे डिस्कशन ज़्यादा रहती थी या फिर ये भी बुद्धा वाले सेट में इन्वॉल्व थे जैसे जस्ट सिटिंग आराम से एंड लुकिंग एट द मॉनिटर? No, again, as I said, also in case of Jimmy, such a fantastic actor, such a fantastic talent, he used to come in his own way prepared on the set. And he's that a very silent person, doesn't speak much at times on the set, but used to concentrate really well on the role. And his contribution was always tremendous, saying that यार मैं ये लाइन ऐसे बोलता हूँ या ये ऐसे बोलूँ क्या. So that always तो सर वो कहानियां जो हम कई बार सुनते हैं, वो जो किस्से कहानियां फिल्मों के होते हैं लंच टाइम पर एंड ऑल, वो ऐसे नहीं हुआ आपके सेट पे कि यार ऐसे कहानी, अरे मैं जब वहां शूटिंग कर रहा था ऐसा कुछ है? ये एकदम मतलब बहुत ही वर्कहॉलिक सेट टाइप लग रहा है। वर्कहॉलिक नहीं था, लेकिन गॉसिप फ्रंट जीरो था। चलो, doesn't matter. That I'll leave later on if we can find something. I'd now like to invite one of the producers on stage, Shailesh Singh, for a month's relation say. He's backed some big films. And one of the directors, Hansal sir, is here as well. Shahid Tannu, Mannu Aligarh, and now Madaari. It takes guts to back strong films with very, very strong potential. But sometimes you don't know, क्योंकि ये audience पर always question mark रहता है. You know, हम लोग को theater के अंदर private screening पर वाह 7 stars, 9 stars, sometimes even 10 stars. But as a producer, वो दिल ज़्यादा धड़कता है कि 1 day before, 2 days before, 1 week before. आई थिंक मेरा कभी नहीं धड़का। मैं सिर्फ जब कहानी सुनता हूँ मुझे लगता है ये फिल्म बनानी चाहिए, फिर मैं ये नहीं सोचता ये कैसे बनेगी, बस मैं निकल जाता हूँ बनाने के लिए। और कभी रिजल्ट को सोच के आज तक एक भी फिल्म नहीं बनाई मैंने। तो मुझे पता था ये फिल्म भी, चूँकि इरफान सर ने बुलाया था मुझे कि ये कहानी सुनते हैं अच्छी है, मैंने सुनने के बाद बोला हाँ चलो करते हैं। आप रिजल्ट के बारे में सोचते नहीं एंड यू जस्ट स्टार्ट मेकिंग अ फिल्म? मैंने आज तक नहीं सोचा। But that's a very difficult zone sometimes to be in as a producer. ये कैसे, is this because you like writing stories yourself also? You had a inbuilt बचपन से कि मेरे को बॉलीवुड फिल्में बहुत पसंद थी तो मेरे को थोड़ी अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा है? नहीं भाई, मैं प्रोड्यूसर बनता ही नहीं अगर मुझे ये सोचना होता रिजल्ट क्या है, कुछ और करता। मुझे पता नहीं था ये बात था। But like I said, ये चिल्ड माहौल जो सेट का था सर, वो प्रोड्यूसर्स की तरफ भी चलेगा, तो मेरे ख्याल से ये वैसे ही हुआ है। आई थिंक ये क्रेडिट निशी सर को जाता है, क्योंकि सेट पे कभी लगा नहीं हम लोग की शूटिंग कर रहे हैं, टेंशन है कुछ, ये अपने जोन में हमको मतलब बेकार कर दिया था थ्रू आउट द शूट। It's nice. Well thought of set and well thought of all situations, pre-production, always very important. I'd like to also now call on stage the head of Mirage Entertainment, Sonal Deshpande. You've got a huge, yes, a big round of applause, ladies and gentlemen. Welcome, ma'am, and you all have a huge presence as far as exhibiting film is concerned, and I think वो एक अलग दुनिया है जहाँ पे आपको जानना ज़रूरी होता है कि फिल्म कैसी थी। आपके लिए तो काफ़ी रिजल्ट ओरिएंटेड होता होगा क्योंकि आप एग्जिबिट करते हैं, बट नाउ कमिंग टू द अदर साइड, एज फार एज कंटेंट इज कंसर्न, आजकल एक मैरिज की बहुत ज़रूरत है। सिर्फ एक एस्पेक्ट ऑफ फिल्म मेकिंग के बारे में नहीं सोच सकता, यू हैव टू थिंक अबाउट एवरीथिंग, तो दैट इज़ द रीज़न व्हाई यू ऑल केम इनटू दिस जोन। गुड इवनिंग एवरीवन, इरफान साहब, निशी एंड जिमी, Shailesh, thanks everybody. Actually, exhibition and production gel with each other. If you're an exhibitor, I think so. If you want to make a brand, you have to get associated with good films. And I feel when we have seen this film, it was an instant reaction from all the team that we have to go and acquire this film. Because the combination of Nishi, Irrfan, and the story, screenplay, everything was amazing. So I think so. This is going to be a treat for the audience, and the climax and everything is, you will just looking at the film, you'll get stunned. Even with the trailer, we've got stunned actually because. But are you a general film lover yourself also? बहुत सारे लोग फिल्म के बिजनेस में होते हैं लेकिन हर फ्राइडे के फ्राइडे पिक्चरें नहीं देखते हैं, आप देखते हैं? जब भी मौका मिलता है मैं देखती हूँ। हाँ, जैसे कि मैंने सोचा था। But yes, we're glad that you have come on board this film. And now a lady, a very special lady, I'd like to call on stage. Well, this project, the story, the light behind. Let's just put it this way: if the guiding light was or the light moving forward was done by Nishikant, this lady was involved in making sure that happened. Shutappa Sikdar, I'd like to invite you on stage. Big round of applause, ladies and gentlemen, for those not in the, yeah, there we go, Irfan sir's wife. And
Miss Moneybags is how I'd like to call you, because I hear, ma'am, कि all the financial decisions आपके थे, and you decided a number of things on set. Yes, no, yes, no, yes, no. Is that true? That's not true at all. Really? That's not true at all. First of all, I would like to thank especially Shailesh, because it's very difficult today to find somebody to believe in something which is little not so told. So to think of an idea, to get it fruition on the screen is a long journey. And without Shailesh, I don't think we would have been able to do it. And he's the first person we told the story to. He's the first person he said, "Main banaunga." So we didn't, our journey got short in that sense. We didn't have to go and narrate the story to various people. Nishi says it's his 8th film, this is my first film, so I'm very, so I don't know the journey. But it and the does help process. when you have that gentleman in your corner, you know, when you go to narrate a story. Oh, by the way, you know, it's Irrfan's film as well. Doesn't it help? Must be make you feel very proud. Yes, yeah, but it's like, I mean, I am very proud of the story myself. But that's actually, like I said, it's half the battle won, but you still have to have a tight story, otherwise you cannot move forward with it. Yes. Now, since you have chosen to say that, you know, when you did think of the story, and when you came up with the concept like that, was there a lot of brainstorming there? Are you somebody who's a writer? Yeah, And that's why? we and Shailaja worked Yes. together. It was just a seed. And before we came to Irrfan also, we worked for a year to come to Irrfan, because Irrfan is very, 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 very fussy about scripts. And I see him rejecting 2 films at least every day. So we were very nervous. Yeah, So who very did the nervous. narration? Who did the narration? The narration first, Shailaja did little bit and I did it in the more. And then we had Ritesh who wrote the screenplay and then we gave a final narration to him. So- But he read the story and he said, I like it. Acha. So which Irrfan gave sir, us the confidence to develop it. I Yeah. have to ask you this. जब आपकी वाइफ आपको नरेशन दे रही थी, तो उस समय आप कैसे आप भावुक नहीं हो रहे थे और कैसे आप बड़े ऑब्जेक्टिव हो रहे थे सर? सर हमारा काम का रिश्ता जो है ना बहुत ज़्यादा एमिकेबल है नहीं। अच्छा। हम लोग जब काम करते हैं साथ में झगड़ते ज़्यादा हैं। अच्छा। तो इनको अगर नरेशन भी देना होगा तो किसी और से दिलवाती हैं ना। सो वैसे यू नो शी इज़ द बेस्ट क्रिटिक ऑफ माई वर्क. She understands, she has a better understanding of performance. She has some understanding which I have, you know, I have cultivated in drama school, but I think she's inborn, she has that talent. So I rely on other things on her, you know. If I know, if she says that this is a good performance, I know I'll blindly take it that it's a good performance. So she has been a kind of, you know, inspiration for me to shape me as an actor. And I'm so glad that it's actually come out. He's come out very fine, I have to say. Well done. Okay. Now, Nishant Pitti, I would like to call on stage, the CEO and co-founder of easemytrip.com. Ladies and gentlemen, big round of applause as well, please. Thoda aage, if we could just move a little ahead. Yeah. Now, y'all have been pioneers in e-travel, you know, which is now the world. I mean, everyone wants to travel the world and they want to know how to do it. They want to press a button, and that happens with you all. And you all have come into films now. Film presenting is, was it like, you know, like the glamour of the world and the story and everything that you want to be part of? Is that the thought process, or just generally you're film lovers as well? So it depends basically. If you see travel and Bollywood are intertwined to each other. You show up the map of the culture and the heritage to the world. Yeah. So the same way we also do, right? Yeah. So it's intertwined to each other. So that way we plan to do something in the Bollywood industry. And if you talk about me personally, I'm also a movie lover. So I saw the. Do you watch films every Friday? Do you watch them on Saturday, Not Sunday? actually Fridays and Saturdays. You wait for the reviews and you wait for what the critics have to say and what people have to say and then watch it. No, not like that. Yeah, Just on and off when I got time, so I go and watch of the movies. But now, sir, you will be seen in the forefront because now this is your film. Now you have to. You will see. Absolutely. All right. So now, ladies and gentlemen, I would also, yes. I want Sanju to come on stage. Without him, the journey was not, he's the most important person of our, family. And before I call a large part of the crew on stage and all that, I'll just move off and I'll open up for questions. Though I've asked quite a few myself, I know already. Yeah. मैं फोटो बाद में डालूंगा. We'll start the Q&A. आलोक उद्घाटन कीजिए. अच्छा माइक चालू कर दीजिए. Check. One. I represent Saptarshi Cinevision here.
this is just beginning of our journey. And in the beginning itself, we met the legend Irrfan. So I think I can claim to be his friend now. And we are here together. We have a long way to go. I'm sure with Let's this see film where the also, journey begins. with the way it's looking also, I do feel that there's a long way to go at the box office, or it should do really well. Yeah, thank you, thank you, thank you. हाय इरफान, आपके राइट में दिस इज आलोक Sir, right. ऑन योर राइट। सर सवाल है, पिछले दिनों जब ये पोस्टर आया तो कई तारीफें भी हुई, ट्विटर पे भी लिखा गया, आंखें आपकी बहुत कुछ कह जाती हैं। तो खुद की आंखों पे कोई ऐसा कॉम्प्लीमेंट जो आपको सुनने में आया हो पिछले दिनों में, पिछले सालों में? Sir, just before you answer that, if you all could just move to the left a little bit. Yeah. सर ये सब जो है भगवान की देन है सर, मेरा इसमें कोई हाथ नहीं है, भगवान की कसम। और इसका मुझे कुछ पता नहीं है ये क्या, आप किस आंखों में क्या है क्या नहीं है। बट हाँ, लोग बात करते हैं, मेरे फादर बात करते थे, मेरे फादर कहते थे कि आंखें हैं कि प्याला है। तो मैं सो आई थिंक यार ये सब कुछ ऐसा है। तिग्मांशु ने डायलॉग भी ली दिया हमारी फिल्म के अंदर कि साली आंखों के चक्कर में जो है लड़कियाँ हमसे कतराती हैं। तो ये तो मैं नहीं चाहता कि यार लोग जो कतराएं हमसे आंखों के चक्कर में। आई डोंट नो, इट्स आई थिंक जो शरीर है, जो बॉडी है, उसको आप मेंटेन कर सकते हैं, बट जो उसकी कैरेक्टरिस्टिक है वो आपका उसमें कोई लेना देना है नहीं। वो सब ऊपर वाले का दिया हुआ होता है। तो क्रेडिट या जो बदनामी या नाम सब जो है उसका है, मेरा कुछ नहीं है इसमें। मैडम आप कुछ ऐड करना चाहेंगी, क्योंकि सबसे ज़्यादा आप इनसे मिलती होंगी घर पे? इरफान सर थोड़ा सेंटर में आ जाइए। घर की मुर्गी दाल बराबर हो जाती है। सर इरफान सर थोड़ा और अंदर आ जाओ, एंड जिमी सर, या परफेक्ट। ऐसे तो आंखों के बारे में जी 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 आज तक मुझसे तो कहा नहीं है, तुमसे क्या कहेंगे? सर आज कहेंगी ना। मुझे लगता है कि इनकी आंखें बहुत एक्सप्रेसिव हैं, जो बहुत क्लीशेड लाइन है। बट मेरे को जो चीज़ अच्छी लगती है इसकी, इनकी बहुत डायलॉग्स की तारीफ होती है, बट मुझे लगता है उतना एम्फेसिस इनके साइलेंसेस पे नहीं दिए गए हैं, क्योंकि मेरे हिसाब से वो सब टेक्स्ट आंखें ज़्यादा बोलती हैं, वही मैं पढ़ती हूँ पिक्चरों में। इसका मतलब ये है कि घर में जो है साइलेंस रहे तो अच्छा है। इरफान Just one sec, yeah, right here. जी सर, ये लंबा जर्नी था, उसका हर स्टेप पे हमें पता नहीं था क्या होने वाला है। और निशी साहब के साथ की वजह से हर चीज़ जो है धीरे धीरे इस निशी एंड फिर जिमी केम इनटू पिक्चर। आई थिंक इंजॉयबल सफ़र रहा है, बट इट वाज नॉट जैसे होता है ना कि एक फिल्म आपकी कहानी पढ़ते हो, स्क्रिप्ट पढ़ते हो, आपको लगता है यार ये तो मतलब ऐसे करेंगे, आपको सब पता होता है। ये फिल्म ने अपने आप को रिवील नहीं किया कभी भी हमें। ये हर मोड़ पे हमको टेस्ट करती रही। हमने 75% शूट कर लिया था, तब भी हम क्लाइमैक्स डिस्कस कर रहे थे कि यार कहाँ उसको क्या करें, कैसे करें, एंड ये इवॉल्व हुई है फिल्म। जैसे गाना भी हमें शूट नहीं करना था इसका, अभी जो इसका जो मेन गाना है, लेकिन फाइनली एकदम से डिसाइड हुआ एंड एक दिन में निशी साहब ने तैयारी की और हम हैदराबाद करके शूट करके आए हैं। तो मैं पहली बार शायद मैं कोई लिपसिंग करूँगा लाइफ में, तो मुझे डर भी लग रहा था। तो टेस्टिंग सफ़र रहा है एंड इंजॉयबल रहा है बहुत। Irfan, here, straight. Here, slightly towards your right. Irfan, brilliant trailer and a great performance as always. Oh, thank you so much. I remember in 2003 came a movie Hustle where you worked with Jimmy. You were the villain in the movie, and I remember in those days the posters hardly had your presence. Today you are the leading man. The poster has only you in it. Tables have turned. What do you have to say about your rise to glory from Hustle to Madaari? आई वॉज देयर इन द पोस्टर, बट मेरे पे वो थोड़ा धूमिल था, मतलब पीछे वो कम था, लाइट कम थी। तो वही सफ़र यही होता है कि आप पर लाइट कब आएगी और आप अपनी जैसी स्टोरीज कब कर पाएंगे। एंड तो उसी के लिए कोशिश रही है कि आप अपनी तरह की स्टोरीज चुन पाएँ और अपनी तरह की कहानियाँ कर पाएँ और अपनी तरह से लोगों को एंगेज और एंटरटेन कर सकें। तो वो फिर ऊपर वाले के हाथ में, जब वो आपको बैटन थमा दे, तो आई थिंक धीरे धीरे चीज़ें बेहतर हो रही हैं। और उसका श्रेय जो है बहुत कुछ हमारी नई जनरेशन जो डायरेक्टर्स और फिल्म मेकर्स की है वो, और ऑडियंस को बहुत बड़ा श्रेय है उसका। अगर ऑडियंस ये नहीं होती तो हम अपनी इस जगह पे खड़े होकर ये बात नहीं कर रहे होते। Also, June 10th को फिल्म आ रही है. It will clash with Amitabh Bachchan and Nawazuddin Siddiqui's Teen. Any concerns on that front? Is there film on 10th? Yeah. Okay. Teen, Amitabh and Nawaz. हमने तो 2 महीने पहले डिसाइड किया था, हमें पता नहीं, मतलब अभी डिसाइड हुआ है क्या 3 का? Sir, actually Teen, नहीं, Irfan, Teen was clashing with Sarabjit.
So Teen got postponed and now your film will be clashing with Teen. तो आई थिंक 3 फिल्में आ सकती हैं 10 जून को. So no problems in नहीं taking on एक्चुअली Amitabh. क्या है यार, वो लोग बड़े लोग हैं, वो बहुत सालों से इंडस्ट्री में हैं, बचपन से हम देखते आ रहे हैं. उनके भी लोग उनकी भी फिल्म देखने जाएं, हमारी भी देखने जाएं. हमारी ऑडियंस कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है. अगर पूरी ऑडियंस अगर दोनों फिल्मों में आ जाए तो बहुत है, काफ़ी है. इरफान, अभिषेक ऑन योर लेफ्ट, यहाँ पे जी. इरफान, आपका जो फिल्म में कैरेक्टर है इसका नाम क्या है? निर्मल. निर्मल. तो बिफोर यू शॉट टू स्टारडम, जी. एनी मोमेंट इन योर लाइफ वेयर यू कुड रिलेट टू निर्मल, बिकॉज ऑब्वियसली द फिल्म शोज दैट आम आदमी के लिए इतने ज़्यादा प्रिविलेजेस नहीं होते, बट जस्ट बिकॉज वो होम मिनिस्टर का बेटा है तो उसके लिए बहुत ज़्यादा उसको एक्चुअली आप उसी तरह के होते हैं, हर आदमी उसी तरह का होता है, जो एक आदमी कानून मान के एक आम जिंदगी गुजार रहा है और अपनी ज़िंदगी में खुश होना चाह रहा है. जो छोटा मोटा धंधा करता है और जो उसका परिवार है, उस परिवार में वो खुश है, उसको किसी तरह की शिकायत नहीं है. वो सारे सिस्टम को समझते हुए को एक अच्छा नागरिक बनना चाहता है. तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं, हम भी वही थे जब कॉलेज में पढ़ रहे थे, स्कूल में पढ़ रहे थे. मतलब कोई जानता नहीं है, आपको पहचानता नहीं है, बट आप किसी तरह से अपनी ज़िंदगी को जो है नॉर्मल रख के आप गुजारना चाहते हो उसको. तो आपकी ज़्यादातर ज़िंदगी तो वैसी ही रही है बिफोर यू बिकेम एन एक्टर. यस. हाय जिमी. कई बार ऐसा भी होता है कि आप लाइमलाइट में आने के बाद भी निर्मल ही बने रहते हो. Hi Jimmy, over here. You are playing a cop in this film, and as always, you are looking fantastic. But slightly there, it reminds us of your character in a Wednesday, and even the concept looks similar of you chasing a common man. So what do you have to say about that? इतना तो मुझे ट्रेलर में दिखाया नहीं है कि आप ऐसा बोल दें कि भैया आप वेडनेसडे जैसे लग रहे हो. वेडनेसडे में एक अलग किरदार था, उसकी लुक अलग थी, उसका सब कुछ अलग था. ये तो पता नहीं कैसा अजीब सा सवाल आपने किया. इसमें कौन बोल सकता है वेडनेसडे का? सिर्फ जिमी है सेम उसमें, बट अदरवाइज वो उसके सफ़ेद बाल दिख रहे हैं साइड से, सारा कुछ है. वो एक डिफरेंट किरदार जो है वो करने की कोशिश की गई है. और बाकी फिल्म की मेन चीज़ है, आई थिंक एक कहानी ऐसी है जो आपको मज़ा भी देगी, बिकॉज इट्स अ थ्रिलर. ऑब्वियसली आपको मज़ा आने वाला है कि एक अच्छी अलग कहानी मिल रही है सुनने को, बट कहीं ना कहीं एक भड़ास होती है हम सबके अंदर जो कहीं ना कहीं किसी फिल्म में अगर निकलती दिखे तो बड़ा मज़ा आता है, और फिर आप उसको और इन्जॉय करते हो और वो बार बार देखना चाहते हो कि वो भड़ास बार बार दिखे मेरे को, क्योंकि मैं बाहर जाके तो ये भड़ास निकाल नहीं सकता हूँ. तो मुझे लग रहा है ये एक ऐसी फिल्म है जो आप डेफिनेटली वो अपनी अंदरूनी भड़ास निकालने के लिए आप बहुत एंजॉय करेंगे. Hi Nishikant, talking about the movie A Wednesday, towards your right. Talking about the movie A Wednesday, that was about a common man who takes matters into his own hands. Does this movie has some resemblance to that, because Desh Sora is the tagline? See, the backdrop of the film has a certain issue. That is why you have Desh Sora as the title. Whereas the character is definitely a simple guy, and something tragic happens in his life. And what can be a repercussion? What can be the repercussion of such thing? It can go in any way. Like, I'm sorry, I'm again giving example of my film in Mumbai Meri Jaan. It was not about the Holocaust. It was not about the train blasts. It was about what happens to people because of such a tragedy. So similarly, it is a story of a man after he goes through a tragedy, what happens to him. कौन कौन सी रियल और हमारी ज़िंदगी में क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन हम उस स्टैंड नहीं ले पाते हैं. और ये फिल्म वही उस आदमी के बारे में जो एक स्टैंड लेता है और वो अपने अंदर का हीरो ढूंढता है. हमें लगता है कि हर आदमी के अंदर एक हीरो, एक विलन छुपा होता है. वो उसके चॉइसेस पर है कि वो क्या चूज़ करता है. इरफान, कौन कौन सी रियल घटनाएं हैं जिनसे इंस्पायर है, जिनको देखो रियलिटी के अराउंड ही है पिक्चर, क्योंकि किरदार सारे रियल है. मतलब आम जैसे हमारे आपके जैसे ही हमारे सारे किरदार हैं. तो रियलिटी आप यूँ समझो कि रियल सीक्वेंसेस से ज़्यादा रियलिटी बहुत क्लोज है. मतलब अगर मुझे राजस्थान में शूट करना था तो हम लोग गए थे ऑलमोस्ट जैसलमेर बॉर्डर, वहाँ पे शूटिंग की हम लोग ने डेजर्ट में. फिर कहीं हमको शिमला में करना था तो शिमला जाके शूटिंग की, हरियाणा में करनी थी तो हरियाणा में की, दिल्ली में करनी थी. So we went and tried to be on all real locations, all real places, trying to get all real faces. So that is the reality more than a real incident. इरफान, आपका एक और ट्रेलर है हॉलीवुड मूवी का, इन्फर्नो का.
तो इसका चैप्टर खत्म कर लें, बस एक हिंदुस्तान में रह के हिंदुस्तान की बात कर लें, फिर बाद में आगे आप बढ़ते हैं। इसके बाद मुलाकात नहीं हो पाएगी आपसे। अरे आपसे मैं मिलूंगा इसके बाद, आप बेफिक्र रहिए, Irfan? मैं आपका पीछा नहीं छोड़ूंगा, आप बेफिक्र रहिए। Irfan, I believe you've been also approached for the film adaptation of Jhumpa Lahiri's Interpreters of Melody. How true is that? No, it was long back and I'm out of that. Okay, you're not going to do इरफान, it. Hello? इरफान आपके बाईं ओर, हाँ, प्रशांत फ्रॉम ईटीवी। आपके करियर में जिन निर्देशकों का आपको साथ मिला, चाहे तिग्मांशु धूलिया हों या आसिफ कपाड़िया हों या अब निशिकांत के साथ आप दोबारा काम कर रहे हैं, कितना श्रेय देंगे इन निर्देशकों को इन सारे अपने करियर में? आई थिंक बहुत बड़ा श्रेय है, क्योंकि दे शेप द स्टोरी। एंड आप कितनी भी अच्छी परफॉर्मेंस कर लो, लोग परफॉर्मेंस देखने नहीं आते, लोग अच्छी फिल्म होती है तो परफॉर्मेंस को अप्रिशिएट करते हैं। और हम लोग उस तरह के लोग नहीं हैं जिनके के नाम पे सिर्फ जो है लोग पैसा खर्च करेंगे। जब तक कि हमारी फिल्म अच्छी नहीं होगी, लोग सुनेंगे नहीं, तब तक नहीं आते हैं। हम उतने फॉर्चुनेट नहीं है कि हम सिर्फ खड़े हो जाएं आके और थोड़ा सा मटका किया एंड देन लोग पैसे फेंकने लगते हैं। हमें बहुत थोड़ा हमारी फिल्म तभी लोग देखते हैं जब उसमें कुछ होता है, और उसमें डायरेक्टर का सबसे बड़ा हाथ है। और इन लोगों ने मुझे शेप किया एक्चुअली एज एन एक्टर। मेरे डायरेक्टर्स अगर मुझे नहीं मिलते तो आई डोंट थिंक आई वुड हैव अंडरस्टूड एक्टिंग द वे आई अंडरस्टैंड नाउ। इरफान जी, आज का जो ऑन योर लेफ्ट, ठीक ऑन योर लेफ्ट। इरफान, हमने देखा कि आप एक नेशनल अवार्ड विनर एक्टर हैं, आप एक पद्मश्री अवार्ड विनर एक्टर हैं, और हमने देखा कि आप बॉलीवुड हॉलीवुड दोनों में बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन हम आपको टाइम मैगजीन के कवर पेज पर या बराक ओबामा के साथ में डिनर पर कब देखेंगे? आई थिंक नेक्स्ट ईयर जनवरी, क्योंकि दिसंबर में आना चाह रहे थे बराक। मैंने कहा नहीं जी भैया, दिसंबर में हम लालू प्रसाद के साथ। बोले लालू कौन? मैंने कहा आप लालू को नहीं जानते, फिर आपके साथ डिनर क्या करें? इरफान जिमी सर, इरफान सर एंड जिमी सर, मेरा क्वेश्चन आप दोनों से है, क्योंकि फिल्म का टाइटल मदारी है, तो जो मदारी होते हैं वो अपने जमुरा को लेके काफ़ी ऑब्सेस्ड होता है। तो क्या आप दोनों की लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ है कि जिसे लेके आप दोनों काफ़ी ऑब्सेस्ड हैं, और क्या है वो चीज़? आप दोनों पर्सनली। जी मदारी और जमूरे का देखिए, ये एक स्टेटस गेम है। एक आदमी नचाता है, एक नाचता है। जमूरा नाचता है, मदारी नचाता है। तो हम सब कहीं ना कहीं कभी जमूरे होते हैं, कभी मदारी होते हैं। आप अपने ऑफिस में जाती हैं तो आप जमूरा हैं कि मदारी हैं, आपको पता होगा। आप दोनों की लाइफ में क्या ऐसी चीज़ है जिसको लेके आप दोनों ऑब्सेस्ड हैं? किसी चीज़ को लेके तो होंगे ही सर। कुछ चीज़ें हैं जिसको कि मीडिया के सामने नहीं बोला जा सकता। इरफान, इस तरह सर आप क्या कहना चाहेंगे इस पे? हाँ जी, आप बता दीजिए। आप वो सही बोल रहे हैं, सबके सामने थोड़ा बोल रहे हैं। इरफान दो सवाल है। पहला सवाल इरफान की, जब जो रिसर्च आ रही थी उसमें ये बताया जाता है कि आपका जो कैरेक्टर है या फिर जो कॉस्ट्यूम वगैरह है वो केजरीवाल जी से इंस्पायर है, क्या ये बात सही है? मफलर, आपको कैसे आम आदमी वाला केजरीवाल कहाँ से आपको लग रहे हैं? मैंने इतनी कोशिश की, बेचारे मेकअप मैन हमारे जो है मेकअप टीम, उन्होंने इतने बाल बढ़वाए, दाढ़ी लगवाई, केजरीवाल कहाँ आ गई? तो आप थोड़ा सा ध्यान शिफ्ट करेंगे तो दूसरों से मैं थोड़ा ज़्यादा सिमिलर लगूंगा। आप थोड़ा ध्यान शिफ्ट करके देखिए, ज़रा और पार्टियों में ज़रा नज़र दौड़ाइए, तो किसी और से मैं थोड़ा सिमिलर लग सकता हूँ। इरफान, you are also playing the role of। हम लोगों को इनवाइट मिला इरफान। जी शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। इनवाइट मिला, जी जी, वो एक पर्सनल लेटर था। जी जी, वो आपके बेटे का लिखा हुआ था, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? कुछ बताइए। हमने बहुत रिक्वेस्ट की, भाई साहब एक सूरत दिखा दीजिए इनको। Ayan is his Irfan son, तो big round of applause for him. शुक्रिया बोल दो। Thank you for coming. I didn't know you guys would take the letter seriously, but I'm glad you did. So thanks. तो इन्होंने एक्चुअली इनसे रिक्वेस्ट की गई थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं इनको इन्वॉल्व करूं पब्लिसिटी में या नहीं करूं, बट सब लोगों की राय ये थी कि बिकॉज इट्स अ वेरी इमोशनल एंड इट्स अ रिलेशनशिप बिटवीन ऑल्सो फादर एंड मदर, ऑल्सो फादर एंड सन, सो दे थॉट कि इफ़ ही इनवाइट्स, सो इनसे हमने अप्रूवल लिया। हमने कहा कि आप लिख देंगे, तो इनको अपने अपने कामों में व्यस्त है ये, तो इनको थोड़ा टाइम लगा कन्विंस करने में। फिर हमने कहा कि हम लिख दें, उसको आप ठीक कर दोगे?
तो इन्होंने कहा अच्छा लिख दीजिए, तो हमने लिखा तो इन्होंने पूरा रिजेक्ट कर दिया उसको, मुंह बनाया कि अरे नहीं ये नहीं ये नहीं ये नहीं. सो देन ही रोट हिमसेल्फ एंड देन बहुत ही प्यारा लेटर, बहुत अच्छा. Shutapa, Irfan, you are also playing APJ Abdul Kalam's biopic in Pramod Gore's film. So tell us something about that. Ooh, when? I would love to play him out though. Are you approached for that? No, no, no. नहीं से कैरेक्टर ही तो मतलब इस तरह के कैरेक्टर हैं, इनको कौन नहीं करना चाहेगा, लेकिन डिपेंड करता है कौन बना रहा है. जैसा कि मैंने कहा कि डायरेक्टर के बिना एक्टर बिल्कुल जो है अधूरा है. जब तक कि डायरेक्टर उस तरह का नहीं होगा फिर कुछ भी कैरेक्टर कर लीजिए आप, वो उसका कुछ होगा नहीं. शुतपा, हियर जी, आप बहुत उम्दा राइटर हैं, मैंने आपके साथ काम किया है, इसलिए मुझे पता है कि आप बहुत अच्छा लिखती हैं और बहुत डिफरेंट लिखती हैं. ये फिल्म आपकी जो दूसरी फिल्में जैसे शब्द वगैरह आपने लिखी हैं उनसे कितनी अलग है? ये एक्चुअली मैंने लिखी नहीं है, ये सिर्फ कॉन्सेप्ट हम लोगों ने तैयार किया. लिखा रितेश ने है ये फिल्म, रितेश शाह. और तो मैं ये फिल्म कैसे डिफरेंट है मेरी लिखाई के हिसाब से मैं तो इसका जवाब नहीं दे पाऊंगी, लेकिन ये फिल्म जो मैंने फिल्में की हैं उनमें से ज़रूर डिफरेंट है, क्योंकि ये फिल्म इज़ अबाउट कंसर्न्स. अदर्स वेर अ लिटिल अबाउट फैंटेसी और थ्रिलर, और बट दिस इज़ ऑल्सो थ्रिलर बट विद डेफिनेटली विद अ डीपर कंसर्न. दैट्स द डिफरेंस. Okay, Irfan, on your left. Irfan, आप भी NSD से हैं, नवाज भी NSD से हैं, तो कुछ डर रहता है क्योंकि उनको पब्लिक बहुत पसंद कर रही है. बेहतरीन NSD से 2 लोग आए क्या? NSD से बहुत आए हैं यार, बहुत सारे लोग हैं. लेकिन हाल फिलहाल में उनकी बहुत डिमांड है, बहुत अच्छी फिल्में कर रहे हैं वो जी. तो कोई एक उनकी फिल्म जो आपको बेहद पसंद आई हो, कोई आप उनसे मिले हो, कोई कॉम्प्लीमेंट दिया हो? मुझे उनकी लंच बॉक्स बहुत पसंद आई थी जिसमें उनका काम ज़्यादा सराहा गया. मैं देख नहीं पाया यार. जी जी. इरफान, मैं तो ज़रूर बताऊंगा. जी, जैसा कि आपने बताया, क्योंकि हासिल फिल्म में आपने एक डायलॉग शेयर किया था अभी, उसमें एक अडल्ट डायलॉग भी था जो आप जिमी शेरगिल से कहते कि सेक्स हो गया क्या? तो ऐसी बातें आप ऑन साइड ऑफ साइड करते हैं क्या आपस में? मैं एक्चुअली मैं कहना चाह रहा था, मैंने डायरेक्टर को बोला भी, हम साथ में ही थे, तो मैंने कहा कि यार ये सेक्स हो गया क्या, ये डायलॉग मुझे ठीक लग रहा है. मैंने कहा हम बोलते हैं संभोग हो गया क्या, तो वो उनको पसंद नहीं आया. और ऑफसेट में क्या करता हूँ वो हम मिलके बात कर लेंगे बाहर. अच्छा, एक आखिरी सवाल. एनी अनकैनी इंसिडेंट्स ड्यूरिंग द फिल्म, कुछ अटपटा हुआ हो जो आप शेयर करना चाहें? अटपटा नहीं हुआ यार. आई थिंक बहुत स्मूथ था एंड इट वाज नॉट, it never felt like we are shooting, you know. There's no, it's a pin drop silence, everybody knows what they are doing, and it was the most enjoyable and most peaceful shooting I had. All right, one second. We'll just stick to the last question, guys. Sorry. So since you've been on the mic for a while, Irfan, many congratulations for the trailer. आप जो प्रोजेक्ट चूज करते हैं वो बहुत ही स्प्लेंडेड रहती है, और एक फ्यूचर प्रोजेक्ट था आपका कंगना के साथ, डिवाइन लवर्स. ऑडियंसेस एक्सपेक्ट कर रहे थे कि एक पावर पैक परफॉर्मेंस मिलेगा आपका और कंगना के साथ में, बट कह सकते हैं वी हैव लॉस्ट आउट ऑन सीइंग अ पावर पैक परफॉर्मेंस. आई थिंक मुझे ही पता नहीं कि मैं डिवाइन लवर मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, बहुत दूर है वो फिल्म ना, वो कभी आती है चली जाती है. और कंगना अब इतनी पहुंच के बाहर हो चुकी हैं कि अब उनके साथ अगर हीरोइन बनने का मुझे शौक है तो मैं ज़रूर करूँगा. अगर वो हीरो बने और मैं हीरोइन बनूँ तो मैं ज़रूर करूँगा. कोई ऐसा स्क्रिप्ट आए जिसमें कि वो हीरो हैं और मैं हीरोइन हूँ, मैं ज़रूर करूँगा. इरफान, एक लास्ट सवाल पूछना चाहूँगी. अच्छा ठीक है, नाउ वन लास्ट. पिक्चर की लास्ट टैगलाइन है देश सो रहा है, तो आपको क्या लगता है देश को पे अभी जगाने की ज़रूरत है? देश को, जी, आपसे और जिमी दोनों से. अरे साहब, ये तो बहुत ज़्यादा मुद्दे हैं, ऐसे थोड़ी है. आई थिंक आदमी को अपने बारे में अवेयर होना बहुत ज़रूरी है कि वो उसके राइट्स क्या हैं और उसकी अपनी जिम्मेदारी क्या है. खाली राइट्स तो सब मांगते हैं, लेकिन जिम्मेदारी भी क्या है. आदमी अपने बारे में चिंता कर ले, वही बहुत बड़ी बात है. और तभी उसको समझ में आता है कि वो सिस्टम के बारे में तभी समझ पाता है जब वो अपने बारे में समझ सके. तो ये मुद्दे तो बहुत ज़्यादा हैं, उसके बारे में आप क्या, और बहुत सा अच्छा काम भी हो रहा है और बहुत सी चीज़ें हैं जो ठीक भी होनी है. तो ये तो लंबा चैप्टर है, उसको ऐसे मतलब फिल्म में कैसे समेट लेंगे हम. ऑलराइट लेडीज एंड जेंटलमैन, थैंक यू वेरी मच. अब नहीं हो गया, और तो वैसे दोबारा मिलेंगे प्रमोशन के दौरान, तो सब आएंगे ही वैसे, है ना. तो अभी आई वुड लाइक टू कॉल द has taken that place. Do you think she deserves that
Oh yes, she deserves much more. You know what she's doing and the way she has reached there in such a small time, and with so much of recognition, and she's doing great. And that industry is not easy. It's something which is happening out of this world, and she deserves all praise. And I'm sure there will be many more people which will get their name there in the industry, and many more directors would travel. I hope many directors should travel because they are talented. Our country has such a talented directors, and they must go and work there. Thank you so much, Irfan. Thank you so much, sir. Just do stay on stage. I'd like to call everyone. Ek second. The cast and crew and everyone involved with the film, I'd like to call on stage, including you. My crew's So- there. Should I call them? Yeah, It's very please, long. please. All right, it's My DOP, not that Avinash long Arun. a journey. Please, My everyone on editor, stage. Arif Sheikh. है ना? चलो My आओ। writer, Ritesh Shah. Oh, Ritesh is here? Yes, Ritesh is here. Ritesh, please come. भाऊ एंड गैंग आ जाओ कॉस्ट्यूम And of course, my direction department. और डायरेक्शन Sachin, Bhau, डिपार्टमेंट और Ritesh.
गाना सुनाओ, सर को सहलाओ, या बाल्टी की पानी भर के डाल दो, गली में बम फोड़ दो, या उसके कान के पास जाके जोर से चिल्लाओ, कब तक सोता रहेगा बे। और एक तरीका ये भी है कि डुगडुगी बजाओ। कुछ लोग कहते हैं कि फिल्म बनाओ, फिल्म दिखाओ, फिल्म देखने से शायद आदमी उठ जाए, लेकिन फिल्म की शायद ऐसी किस्मत नहीं होती है कि फिल्म किसी को जगा सके। लेकिन हमारा काम भांडगिरी है। हम अपना काम करेंगे, अपना धर्म निभाएंगे, डुगडुगी बजाएंगे, कोई जागे ना जागे, डम डमा डम डम डमा डम डम डमा डम डम। थैंक यू, शुक्रिया। Fantastic song, Nishi sir. Very aggressive, very melodious, very fast-paced, very nice, very different avatar to see Irrfan Khan in. तो and it's almost like एक short film बन गई थी इस गाने के अंदर। तो ये thought मतलब एक music video की तरह shoot किया गया है। ये कैसे? Well, actually, it was designed as a part of the film in the background initially, but when the song eventually came to us, as in lyrics with Irshad Kamil Sahab and music of Vishal Bhardwaj, the song was so powerful. I said, of course, it is there in the film, but we needed to make a video out of this also, so that it reaches out to more people also. And so the thought came that Irrfan should be singing the song, lip-syncing the song, and his first thing was, I have never lip-synced a song. I was going to say that. ये नया experience इतने सालों के बाद. So I said, let's give it a try. Let's see how things go. And then one fine day we went to a location where we could get a railway station and a bus and a candle march and everything. And in one day we shot the song with, of course, Irrfan. And then we edited, and finally this is the end result. This whole song is being shot in one day. Wow. थोड़ा ज़्यादा बोल रहा है, एक दिन नहीं दिया सर। 3 बजे कैमरा रोल किया इन्होंने। एक्चुअली जो लोकेशन में पहुंचने में ज़्यादा टाइम लगा था, जितना सॉन्ग शूट करने में लगा। बट सर ये एक्सपीरियंस कैसा था ये लिप सिंकिंग का? आपने इतनी सारी फिल्में कर ली हैं, यहाँ से विदेश चले गए, लेकिन लिप सिंक अभी तक नहीं किया था। सर लिप सिंक नहीं किया, मैंने अभी भी नहीं किया एक्चुअली। आप देखेंगे गौर से तो मैं सिंक में नहीं हूँ। मैं ये गाना जो है बहुत इम्पोर्टेंट था फिल्म के लिए, और इसीलिए हम लोग बहुत दिनों से विशाल साहब से हम डिस्कस करते रहे बहुत दिनों तक कि इसको किस तरह से किया जाए। और ये आइडिया था दिमाग में, और उसका प्रिसीजन मेरे दिमाग में था किस तरह का होना चाहिए। इट शुड बिकम अ यूथ एंथम, इट शुड टॉक टू पीपल, इट शुड डू समथिंग टू पीपल। इट्स नॉट जस्ट एंटरटेनमेंट कि आपने गाना गाया नाच लिए। आप नाचो, लेकिन वो रहना चाहिए आपके अंदर। तो विशाल साहब ने बहुत टाइम लिया इसको लेकर। एक दिन वो आए, बोले कि आप जो बोल रहे हो ना, आप बोलना बंद कर दो, मुझे करने दो, मैं जैसा करता हूँ। फिर देन ही केम अप विद हिज ओन वर्जन, एंड इरशाद ने जो लिरिक्स लिखे हैं, आई थिंक दैट्स फैंटास्टिक, एंड दैट्स हाउ इट केम। एंड देन हम निशी साहब और हम पहुँचे हैदराबाद, तो हम लोग डिस्कस करने वाले थे कैसे करेंगे। तो रात को हम बात नहीं कर पाए, सुबह हम बात नहीं कर पाए, 12-1 बजे मिले कि देखते हैं वहाँ क्या होता है। तो डिस्कशन तब भी नहीं हुआ। देन इन्होंने कैमरा प्लेसमेंट किया था, कुछ ट्रॉली का मूवमेंट, तो इन्होंने बिठाया। इनका आइडिया ये था कि लाइफ चलती रहनी चाहिए पीछे बैकग्राउंड में, और आप जो हैं गाना गा रहे हैं। तो जो पहला फ्रेम लगा और गाना जिस तरह पहला शॉट जो रिहर्सल हुई, उसमें लग गया कि सब कुछ इज इन प्लेस, एंड दैट्स हाउ एवरीथिंग फेल इनटू प्लेस। एंड देन शाम तक, रात के 10-11 बजे तक हमने खत्म कर दिया था गाना। ये जो पहली बार आप चीज कर रहे थे, इज इट स्टिल पॉसिबल फॉर यू टू गेट नर्वस लिप सिंकिंग के दौरान? Were you nervous that you not get it right? I think फिल्म उसका गाने का फोर्स ऐसा है, गाने में इतना कुछ है कि उसमें नर्वसनेस की जगह बचती नहीं है। आपको यही लगता है कि बस जो लिखा गया है, जिस तरह से कंपोज हुआ है, उसके साथ न्याय हो जाए, उसके साथ हम थोड़ा बहुत चल लें, उतना काफ़ी है। अगर ये सिंक हुआ नहीं मिला था हमें गाना, हमें रफ मिला था। अगर सिंक हुआ होता तो मैं बेहतर लिप सिंक करता। I'd like to call Jimmy Shergill on stage as well. तालियां हो जाए जिमी के लिए। और एक और माइक हो जाए स्टेज पर। A first for him, but not a first for you. This is familiar territory for you as far as lip syncing is concerned. लेकिन आप lip sync नहीं करते इस गाने में. You are more like part of that entire storyboard that's going on. Did you like the song when you first heard it? Yeah, I saw the song and I loved it. And the entire concept, coming in there, like Nishi sir said, कि it wasn't part of the initial plan, लेकिन फिर बना दिया, और now the product that has come out is fantastic. Yeah, superb. I think it's
is doing justification to what the film is also about. The three of you, अगर आप खड़े हो जाए, किसका musical sense best है? अच्छा जिमी नहीं बट ऑन अ सीरियस नोट जब गाना सुनाते सिटिंग्स होती है ना सर म्यूजिकल सिटिंग्स तो आप लोग तो बड़े लोग यहाँ बैठ जाते सारे कैसा लगा ये गाना तो पहले दिमाग में सबसे पहले किसका ही आता है यू आर द डायरेक्टर निशिकांत यू मस्ट नो नहीं नहीं सामने म्यूजिक डायरेक्टर जब विशाल भारद्वाज हो ना तो वो मुझसे भी बड़े हैं बहुत अच्छा तो वो करेक्ट ही होंगे ऐसा बोल के मैं चुप हो जाता बट इरफान सर आप म्यूजिक में कभी बैठते हैं ज़्यादा मुझे मौका दिया ही नहीं क्या कभी बैठने का अब मिल रहा है मौका तो ये उसका थोड़ा सा असर है मतलब थोड़ा सी झलकी है ये जी तो मौका मिलेगा तो म्यूजिक मेरे अंदर है लेकिन वो निकल नहीं पाता बाहर तो मैं मौके ढूंढ रहा हूँ कि कैसे बाहर निकले I think we're reaching a nice stage where we can actually take out this hidden talent of yours. I'd like to invite on stage also Shailesh Singh from Paramans Creations. A big round of applause, ladies and gentlemen. शैलेश का बहुत अच्छा है म्यूजिक सेंस एक्चुअली शैलेश का अच्छा है इसकी फिल्मों में सारे गाने सुनो आप कोई ना कोई आपको तो बहुत एक्सपीरियंस है सर आपकी म्यूजिकल सेंस कैसी है शैलेश जस्ट या आई थिंक मैं लकी हूँ अच्छा सेंस से ज़्यादा मैं लकी हूँ जिसके साथ भी काम किया आई थिंक वो सारे लोग टैलेंटेड थे इसलिए गाने हमेशा अच्छे मिले मुझे विशाल भारद्वाज जी इरशाद कामिल साहब आई थिंक पहली बार काम कर रहे हैं साथ में जी बट आई वन ऑफ दोस पीपल अगर आपको पसंद नहीं आए आप दबा के अंदर रखते हो या फिर उस समय बोल देते हो बाद में या फिर व्हाट्सएप जाएगा नहीं मैं बोल देता हूँ वो बोल देते हैं इस फिल्म में कोई यू नो दिस इज सरप्राइजिंग वन डिडंट एक्सपेक्ट दिस काइंड ऑफ अ नाइस म्यूजिक वीडियो व्हिच इज वेरी पंपी सॉन्ग वेरी नाइस एंड एग्रेसिव बट वेरी मेलोडियस आल्सो आई डिडंट एक्सपेक्ट दिस काइंड ऑफ सॉन्ग फ्रॉम इट तो आपने जब पहली बार इसे देखा फिनिश प्रोडक्ट सो वर यू आल्सो सरप्राइज्ड नहीं आई थिंक पहले डिस्कस हुआ था निशी सर के साथ तो इनको पता था क्या करने वाले हैं तो गए और शूट करके आए और आई थिंक वही हुआ जो हमने डिस्कस किया था पिछली बार ट्रेलर लॉन्च पर भी आप ऐसे ही बड़े रिलैक्स रहते हैं हर बार ऐसे ही रहते हैं सर कोई भी पिक्चर के लॉन्च के दौरान मतलब अब तो हार्डली 20 और डेज बच गए हैं 15 जुलाई क्या रिलीज तक जो है जितनी परेशानियां होती है वो अपनी पीक पे पहुंच चुकी होती है अच्छा तो उसके बाद आदमी कुछ होता नहीं परेशान होने की चलो ठीक है वी होप दैट्स गोना बी गुड लक ऑन दैट आई गॉट अ लार्ज नंबर ऑफ प्रोड्यूसर्स एज फर्स्ट ऑफ ऑल बिग राउंड टू एवरीवन हु गॉट टुगेदर टू रिलीज द फिल्म यू नो एवरीवन टॉक्स अबाउट मेकिंग द फिल्म तो बन जाती है लेकिन हजारों फिल्में कैंस में पड़ी रहती हैं किसी को लाइट ऑफ डे नहीं मिलता है आई लाइक टू कॉल फ्रॉम पूजा एंटरटेनमेंट दीपशिका बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर हर Shutapa, I'd like to call you on stage as well, please. A big round of applause, ladies and gentlemen. Shailaja, a big round of applause. Keep it going. 5-7 और लोग हैं. It'll be nice. Sonal, I'd like to call you on stage also, head of Mirage Entertainment. Nishant Pitti, CEO and co-founder of easemytrip.com. Sanjeev Kumar, Saptarishi, Cinevision. And screenplay and dialogues written by Ritesh Shah. I'd like to call you also on stage. Let's move a little more to the center. Irfan sir, thoda idhar aa jaओ. Deepshika, well, it's being released now, so congratulations first of all. Sarabjit also coming out there and managing to. Every time you release a film, do you ever get nervous? Are you the first person to check the box office numbers? Are you that person with I'm that checking SMS? it like every Friday show, morning, 9 o'clock, 10 o'clock, 11 o'clock. So today I want to Ivana. ask you. All of us want to know this. We're all out there trying to tweet the numbers first. By when do you feel comfortable? What is a good day? Is Sunday afternoon, Saturday afternoon, or is the Monday afternoon the crucial day? Well, Friday night, I guess, if the film is good. And I mean, the numbers are out Friday night. So तो अगर फ्राइडे सैटरडे नहीं चली फिर भी मंडे का कोई वेट नहीं होता कि क्या पता अभी मिरेकल हो तक तो जाए. जो 2 किए चली है. So this is the second one, so I'm sure. I'm sure it'll work well. Anyway, congratulations on this release. Thank you so much. We're closer to release now, Shutappa. Are you getting a little more nervous? Everyone seems very relaxed here. No? Not nervous at all. At all? At all. But obviously because you're confident of the product, that's why. Yes, absolutely. And did you like this song? Are you somebody who's very good with songs? You're great with words. It's a very good song. And Irfan sir says he's never had any experience. So again, you're the only experience with his songs also at home, is it? No, but I think he didn't do the lip sync well. She's always been his toughest critic. Shailaja? तक ही लेता है Great project to be part of. You know, everyone is always excited to see Irfan sir in action. Great cast. Everything seems to be falling into place. It's like a domino effect. एक बार अच्छी शुरुआत हो जाती है उसका चलते रहता है. So your feelings right now?
My feelings, I'm really grateful to Irrfan actually, because for me it's my first film. Everybody else is a veteran here, and for Irrfan to believe in the project and then do it was a very big deal for me. So I really want to thank him publicly today. Wonderful. Nishant, this is also now becoming familiar territory for you. I think we're reaching in the zone where last time also you had said now you want to start watching more films during the trailer launch. Definitely. So since then, so that was May. I checked my bill date. Okay, so this is June. How many films have you watched since then? Not a single one. Why? Busy with this one only, no? Oh, so you're saying basically after July 15th, Yeah, only the films will start. Definitely. So anyway, congratulations. At least you are being honest about it. The first thing that person needs. Okay. Sonal, big day. Now we're 20 days away. I think Nishant is talking about acquisition films. After 15 July, he will watch films for acquisition. You're going to be a predator there. Jo pasand aayi wo li, jo pasand nahi aayi ekdam change karo. But now feelings closer to release. Now are you like watching more that is doing well? अभी क्या judgment पहुंच जाता है? ये वाली अच्छी करती है, ऐसी type की फिल्में अच्छी कर रही हैं, ये वाली नहीं चल रही हैं. Have you reached that stage where you're deciding? No, nothing. I haven't reached to any stage. I believe in my product. I believe in everything. And I'm very thankful to everyone that I'm part of this project. And I'm sure about this project. It's very rare that so many people involved in one project, where there is no clear-cut head as such, believe completely in. You know, this I think is a round of applause for all of you all. In a board meeting, it's never happened before also. But yeah, it works well here. Sanjeev sir, your thoughts on this? Yes, we have believed, we are the few ones since beginning we have believed in the project. The song is looking great, the trailer has been received well, and confidence level is going high. Let's see. घर पे कौन बोलता है कि हाँ सबको अच्छी लगी लेकिन मुझे अगर अच्छी नहीं लगी? Who's the biggest critic in your house? Oh, that has to be the wife. Has to be the wife. Be careful, sir. Strong statements ना मारे stage पर. Ritesh, screenplay and dialogues are the heart and soul of a film. सबको आजकल बड़ी नॉलेज हो गई है थैंक्स टू फेसबुक ऑफ हाउ अ फिल्म शुड बी कि स्क्रीन प्ले टाइट था, थोड़ा लूज था, डायलॉग्स अच्छे थे, डायलॉग्स अच्छे नहीं थे. सो यू आर मोस्ट अंडर फायर मोस्ट ऑफ द टाइम. तो मुश्किल था इसके लिए लिखना. इट लुक्स लाइक अ वेरी टफ फिल्म आल्सो. यस, इट्स पिक्चराइज्ड ऑन इरफान, जिमी इज देयर, निशिकांत सर इज देयर, बट स्टिल difficult film to write for you? Yeah, absolutely. It took a long time to write. It was rewritten while it was getting shot and edited, which helped, I think, to discover a genre. It was a mixed genre. It was actually a thriller marries a black comedy, so it was very difficult to balance it out. So what you see is about 14 months of writing. You write really well. Are you going to write, have you started writing something else also very soon, or? Yes, I am writing all the time, but it's people like these who eventually get it out. It's very difficult to get stuff like this out. That's true, actually. You need someone like Irrfan also to out there. I'll open out to the press. Any questions? I can't see where the mic is, so yeah. चेक. हाँ इरफान सर, आपके लेफ्ट में आलोक है. मेरा सवाल आपसे है कि मैंने नाम बताया, मेरा नाम आलोक है. सर सवाल ये है कि अगर सब सही रहता तो आज के दिन अपनी फिल्म थिएटर में होती, 3-4 शो हो गए रहते. 10 जून पहले रिलीज होने वाली थी. तो ये रिलीज डेट खिसकाई गई है, कुछ खास वजहें थी, और 15 जुलाई के लिए कितने तैयार हैं अभी आप? सर एक्चुअली ये डिसीजन जो है वो मेरा नहीं है, कलेक्टिव डिसीजन है. हमें लग रहा था कि सॉन्ग जो है वो पावरफुल सॉन्ग है और इसको ऐसे नहीं जाने देना चाहिए. इसको लोगों में थोड़ा लोगों से बातचीत शुरू हो जाए सॉन्ग की, और उसके बाद फिल्म आना चाहिए. दूसरी बात, 10 तारीख को ऐसा लगा था जैसे हमने जब अनाउंस किया तब हम अकेले थे. उसके बाद फिर पता नहीं क्या हुआ, इतनी फिल्में आ गई. उसके बाद 6 फिल्में आने वाली थी जो कि अभी नहीं आई शायद, लेकिन और फिर रमज़ान का टाइम था. कुछ लोगों को ये भी था कि यार रमज़ान निकल जाने दो. तो बहुत सारे रीज़न थे, लेकिन ये सब कलेक्टिव डिसीजन था, ये मेरा अकेले का डिसीजन नहीं था. मोस्टली इट वाज कि थोड़ा ग्रो हो जाए फिल्म, थोड़ा सॉन्ग भी लोगों के ज़बान पे चढ़ जाए और फिर करना अच्छा होगा. सर गीत है कि डमा डमा डम 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 डम, और एक तरफ जगाने की बात हो रही है, और इस समय बहुत अहम मुद्दा उठ रहा है इंडस्ट्री में भी कि सेंसर बोर्ड को भी जगना चाहिए. CBFC जो हमारे यहाँ अलग अलग चीज़ों पे चला रहा है कैंची, तो क्या ये गाना उनके लिए भी एप्ट है, उस संस्था सर? हर चीज़ के लिए है. अभी सेंसर बोर्ड का मुद्दा क्या हमारे देश में मुद्दा अगर सिर्फ पेपर में आ गया तो इसका मतलब थोड़ी उठ नहीं रहा. मुद्दे तो बहुत हैं और हर मोमेंट पे मुद्दे ही मुद्दे हैं, वो हम तक पहुंचते नहीं हैं. अब ये बड़ी अजीब बात है कि इतने सालों से
कुछ कुछ मैगजीन जो आप लोगों में से जिन लोगों का इंटीग्रिटी है, उन लोगों ने एक स्टेट के बारे में लिखा और उसकी सीवियरिटी बताई क्राइसिस की, और वो बात आज तक हम तक पहुंच रही है। 10 साल बाद कोई एक फिल्म बनती है उस स्टेट पे बेस्ड होके, और सडनली इतना बड़ा मुद्दा बन जाता है। और हमें तो मतलब मुझे दिक्कत ये है कि हमें ये भी नहीं पता कि सेंसर बोर्ड है कि सर्टिफिकेट बोर्ड है। दिस इज सर्टिफिकेट बोर्ड, इट्स नॉट सेंसर बोर्ड। नॉट सो हमें ये भी नहीं पता है कि सेंसर बोर्ड है कि हम हमेशा बोलते हैं कि सेंसर बोर्ड है। सो आई थिंक ये अंग्रेज़ों के बनाए हुए रूल है। अब किसी एक इंडिविजुअल पे इसका इल्ज़ाम नहीं जाना चाहिए। अब किसी को भी आप बिठाएंगे, वो अगर रूल बुक से चलेगा तो रूल इस तरह के लिखे हुए हैं जो उस ज़माने में लिखे गए थे, और वो अंग्रेज़ क्योंकि मतलब हमको कंट्रोल करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने ऐसे रूल लिखे थे। और हम सो रहे हैं, देश सो रहा है। हमें कुछ ज़रूरत ही नहीं है किसी की चीज़ को चेंज करने की। अभी तो पूरा कंट्री सेंसर बोर्ड बन गया है कि कोई भी कोई चीज़ उठती है तो कोई मुद्दा खड़ा कर लेता है। तो आई थिंक इसको थोड़ा सीरियसली लेना चाहिए, इंडस्ट्री को सामने आना चाहिए। इंडस्ट्री 4000 करोड़ साल में टैक्स पे करती है, तो गवर्नमेंट को कम से कम जो लोग टैक्स पे कर रहे हैं उनको थोड़ा सा मतलब एक जेस्चर होना चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से कि आप टैक्स पे कर, थोड़ा शाबाशी तो देना चाहिए यार उन लोगों को जो टैक्स पे कर रहे हैं इतना। ट्रू, वेरी तो आई थिंक हमें भी जागना चाहिए, गवर्नमेंट को भी थोड़ा सा सोचना चाहिए। हर बार 40 साल से महेश भट्ट का कुछ बयान था कि 40 साल पहले कुछ उन्होंने फिल्म बनाई थी, वो भी ऐसी अटक गई थी। तो हम लोग सो रहे हैं एक्चुअली। और सर, अगर गीत आपका इतना मतलब बूस्ट करता है ये गाना, अगर चुनावी प्रचारों में अगर ये गीत मांगे तो आप उन्हें देंगे आने वाले दिनों में जब भी चुनाव होंगे? नहीं सर, चुनाव हम क्यों देंगे, हम नहीं देंगे, क्योंकि वो बैकग्राउंड में चलाते सर हैं। ऐसा होता है क्रिएशन का, ये होता है जिस दिन हमने ये फिल्म की और जिस दिन ये मार्केट में आई, ना तो ये निश्चित साहब की रहेगी, ना मेरी रहेगी, ना रितेश जी की रहेगी, फिर ये ऑडियंस की होगी। ऑडियंस को जैसे लेना चाहे, जैसे इस्तेमाल करना चाहे। अब कॉपीराइट अगर मांगे तो हम तो नहीं देंगे कॉपीराइट, क्योंकि इलेक्शन का वो कैंपेन नहीं है। बट बेहतरीन गीत है, ऊर्जा भरती है और ज़्यादा होती है। इसीलिए यही था, इसीलिए इतना टाइम लगा इसमें, और शुक्रिया आपको, आपने हमको ये बताया। थैंक यू सर। निशिकांत सर, कोई 1100 करोड़ रुपए खर्च करके बता रहा है कि देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है, और आप कह रहे हैं कि देश सो रहा है। कोई 1100 करोड़ रुपए खर्च कर रहा है और बता रहा है कि देश आगे बढ़ रहा है, देश बदल रहा है। आप चंद करोड़ों में कह रहे हैं देश सो रहा है। अभी मैं क्या बोलूँ, आपने तो सवाल में ही जवाब दे दिया। नहीं देखो, ये तो पूरा एक मुद्दा है सिस्टम का जो हम प्रेजेंट करना चाहते हैं, और देश सो रहा है बहुत सिंबॉलिक लाइन है। मतलब हम कई मुद्दों पे सो रहे हैं इन द सेंस हम कई मुद्दों पे अनअवेयर हैं, हम नहीं जानते बहुत सारी चीज़ें जो शायद लॉफुली हमारी है, जो लॉ बुक्स में हमारे हक है, वो हम नहीं जानते कई बार। तो इट इज़ क्वाइट सिंबॉलिकली प्रेजेंटेड कि देश सो रहा है। तो राजे भैया, दोनों चीज़ें हो सकती है ना। हम सोएंगे तो नहीं उसके बाद सर। इरफान, हियर पीछे यहाँ पे लेफ्ट में आपके। हाय, आई एम संदेश फ्रॉम जूम। इरफान, एक्सट्रीम लेफ्ट टॉप, 3 मूवी आज रिलीज हुई है अमित जी की, और उन्हें बहुत अच्छे रिव्यूज़ मिले हैं। और पहले आई थिंक मदारी भी लाइक यही डेट पे रिलीज होने वाली थी, तो आज लाइक 3 को जैसे रिस्पांस मिला है उसको, उनको रिव्यूज़ अच्छे मिले हैं। सो लाइक ये जो डिसीजन था मदारी को थोड़ा डिले करने का, वुड यू से कि थोड़ा लाइक डिड इट वाज इट अ गुड डिसीजन, क्योंकि 3 के साथ अगर होती तो थोड़ा कंपटीशन हो जाता। सर, कंपटीशन करने का मुझे पास टाइम नहीं है। आई थिंक हर आदमी को अपना कंपटीशन है। बच्चन साहब का अपना कंपटीशन अपने आप से है, वो हमसे कंपटीशन करने की ज़रूरत नहीं है, ना ही मुझे बच्चन साहब से कंपटीशन करने की ज़रूरत है। हमारा अपने से कंपटीशन रहे तो बेहतर है। किसी से कंपटीशन क्यों करेंगे? अगर कभी फंस जाएगा ऐसा मामला तो फिर देखा जाएगा, फिर कर लेंगे कंपटीशन। Yeah, Irfan, here on your left. Yeah, Justin from PTI. Irfan, you did lip sync for the first time for this song. Has there ever been an experience where either music directors or directors have asked you to sing a particular song? Sing like in my yeah, voice? in your own voice, yeah. Yes, there were moments. एक कमर्शियल था जिसमें वो बहुत कोशिश कर रहे थे कि मैं गाऊं, लेकिन मुझे लगता है कि मैं तैयार नहीं था तब,
और वो ना ही उसका कंटेंट ऐसा था कि जो मुझे इस पहली बार गाने के लिए मजबूर करेगा। यार पहली बार अगर आप गा रहे हो तो फिर वो उसमें बात होनी चाहिए, क्योंकि पहली बार अगर आप कुछ कर रहे हो तो उसमें कुछ ऐसी बात होना चाहिए कि आप प्लंज ले लो। अब इसमें मुझे फिक्र नहीं थी कि लिपसिंग होगा नहीं होगा, मेरा मन कर रहा था कि कूद जाओ, देखा जाएगा, तो ऐसी चीज़ होगी तो मैं ज़रूर गाऊंगा कभी। Okay, and also adding to that, you have done quite a bit of commercial movies as well, like Thank You, Crazy for, even Jazba for that matter. Do you see yourself doing a music video dancing around the trees? आपको जो लोग कर रहे हैं वो पसंद नहीं आ रहे क्या? नहीं, it's आपको कमी महसूस हो रही है क्या? No, not at all. But do you see yourself doing? I think we are trying to redefine commercial cinema, and commercial cinema की definition जो है broaden होना चाहिए। वो एक जिस तरह की कमर्शियल सिनेमा एक जोन का कमर्शियल सिनेमा उसी को कमर्शियल सिनेमा बोला जाए, ऐसा नहीं है। और हम कोशिश कर रहे हैं, हमें बहुत लंबा टाइम हो गया कोशिश करते हुए, और आई थिंक हमारी कोशिश आप लोगों की वजह से, ऑडियंस की वजह से सफल भी हो रही है। कमर्शियल सिनेमा का डेफिनेशन थोड़ा ब्रॉडन होना चाहिए, और ये उसी तरह की फिल्में हैं, और ये हमारे लिए जो है ये कमर्शियल सिनेमा एट बेस्ट है। थैंक यू। इरफान सर, हियर इन द मिडिल। सर सामने। Sir, लोग नहीं चले जाएंगे। Sir, first of all, first question is to you. What is your favorite part of the entire song? What is the hard-hitting message of the entire song that you would want the audience to get? अरे आपसे अरे सर एक पहला सेकंड, सवाल है। मतलब एक बड़ा फोटो ऑप भी होगा, मैं पूछता हूँ फिर, नहीं तो उन्होंने इसलिए उन्होंने बोला कि फर्स्ट क्वेश्चन इज फॉर यू, आफ्टर दैट दे आर कमिंग टू यू। आई थिंक पूरा सॉन्ग जो है जिस तरह से अलग अलग उसके अंतरे हैं, वो सॉन्ग जो है एड्रेस कर रहा है अलग अलग चीज़ों को, और आई थिंक थोड़ा और सुनेंगे तो आपको भी समझ में आ जाएगा कि बहुत हार्ड हिटिंग है और ये हमारी रियलिटी बता रहा है। और मुझे इस बात की खुशी है कि वी हैव राइटर्स, पोइट्स लाइक दैट, जो कि इतने सिंपल तरीके से बात जो है लोगों तक पहुंचा सकें। साहिर के जाने के बाद और बाकी लोगों के बाद आपको लगता है कि यार कोई आएगा क्या जो ऐसी बात कहेगा जो दिल के अंदर रह जाए और सालों तक रहे। तो आई थिंक इरशाद कामिल हैं, रितेश हैं, ये लोग हमें ज़मीन देते हैं खड़े होकर नाचने के लिए। हम लोग मदारी, हम डमरू तो बजा देते हैं, लेकिन ज़मीन ये लोग देते हैं। और हमें खुशी है कि इस तरह के लोग अभी हैं हमारी इंडस्ट्री में। थैंक यू सर। दीपिका मैम, द सेकंड क्वेश्चन इज फॉर यू। Yeah, right here in the front. What exactly is Madaari to you? If you were to define Madaari in one word, what is Madaari to you? Well, I think it's a very powerful social message given in the form of a thriller. I can't see who am I answering. Oh. Right there in the middle, yeah. Okay. So it's a very powerful, strong message given in the form of a thriller, and I think that itself compels you to see. I mean, you've seen the trailer. And of course, the combined brilliance of Mr. Irrfan Khan and Nishikant Kamat. So for me, that itself is amazing to go and watch the film. And that's what Thanks a lot. निशिकांत सर, आपसे पूछना चाहूँगा, यहाँ पे पीछे इरफान के साथ, कहाँ पर? यहाँ पे टॉप ऊपर लेफ्ट। लेफ्ट। इरफान के साथ आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा मूवी पे काम करने का? Well, it's always been a pleasure. In fact, we go back a long time. Right from 94-95 we did a television series then. Then we did Mumbai Mere Jaan around 2007. So we have been I think so we both are हमारे लिए तो हमेशा एक पिकनिक रहती है। मतलब ऑफ कोर्स बहुत सीरियसली काम करते हैं दोनों, लेकिन द वर्किंग एटमॉस्फेयर इज़ वेरी नाइस बिकॉज वी बोथ नो ईच अदर प्रिटी वेल। वी नो कि दोनों की लाइकिंग्स क्या है एक्चुअली, और दोनों की बाउंड्रीज भी क्या है कि मैं कहाँ क्रॉस नहीं करना चाहिए, वो भी मैं समझता हूँ। क्योंकि सच एन इवॉल्व्ड एक्टर, आई जस्ट हैव टू एक्सप्लेन हिम फ्यू थिंग्स एंड ही अंडरस्टैंड्स इट सो वेल, और रादर ही कम्स प्रिपेयर्ड सो वेल दैट एट टाइम्स आई हैव टू undo few things, saying that don't do this much or do this much. But it's always an honor, always a pleasure to work with such a fantastic actor and a fantastic human being. निशिकांत, मेरा सवाल आपसे, आलोक, आपने शूट एग्जैक्टली कहाँ किया था इस पूरे पोर्शन को, और कुछ मतलब वहाँ तकलीफ भी हुई थी वाइल शूटिंग, या सब चीज़? You're talking about the song? Just the song? Yeah. We shot it in Hyderabad. That was a call which was taken in some 1 week before the shooting. Then the release date was 10th of June, so we had to hurry up a lot of things. And then I wanted
5-6 locations under one roof because he had to be in a railway station, he had to be inside a railway, inside a bus, against a candle march. So eventually we realized that all 5-6 locations I'll have to get it some under one roof. So we went to Ramoji Film City in Hyderabad. And Hyderabad we shot there till morning. We both were not clear what we were going to do. And we just said, let's go with the flow. Let's see what energy we get, how organically the song comes out. So we went to the location, we saw it, and eventually we started shooting at 3 o'clock in the afternoon. And as luck would be, it started raining at 7 in the evening. ओले गिरे थे actually. तो 2 घंटे shooting नहीं हुई. But we still managed to pack up by 10:30. So eventually we shot the song in 5 hours. जिमी, आपको क्या लगता है कि अभी किसे जगाने की या कहाँ जागने की ज़रूरत है, क्योंकि आप पंजाब के भी सुपरस्टार हैं, बॉलीवुड में भी काम करते हैं। सर, 15 तारीख तक वेट कर लो सर, सारा सब कुछ जगा दिया जाएगा। अभी सारा कुछ आज ही निकलवा लो तो 15 कौन जाएगा पिक्चर देखने के लिए? आपके मुखारबिन से सुनना चाहेंगे अगर इफ़ यू वांट टू से समथिंग। और बाकी मैं भी गाना चाहूँगा। सर गा दीजिए सर प्लीज। अभी गाना एक्चुअली पूरा शूट हुआ नहीं है, उसके कुछ आधा गाना बाकी है, तो लेट्स मतलब सिंग ऐसा। अरे फिर मेरे हिट्स कहाँ आएंगे यूट्यूब पे जब पहली बार आज सुना दूंगा तो आप लोग पहले ही बर्बाद कर दोगे। Hi Jimmy. हाँ जी। Yes ma'am. Yeah, we saw you playing a cop recently in Traffic, and you're playing a cop in this too. So how different was it? इसमें आपको लग रहा है कॉप है, वो कुछ और है, पता नहीं क्या है वो देख लेना 15 को। It's basically a CBI guy, but it's a far more matured character or a matured cop from what I've done before. Irfan ji, you have made the first move now. You have sung a song. Will we ever see you singing romantic songs in films now again? हाँ, रोमांटिक सॉन्ग मैं कोशिश कर रहा हूँ, कोई भरोसा नहीं कर रहा मुझ पे। मैं ज़रूर करना चाहूँगा रोमांटिक सॉन्ग। मैंने रोमांटिक सिचुएशंस की हैं, मोहब्बत की है स्क्रीन पे, वो आप लोगों ने सराहा है। मैं अपनी तरह की मोहब्बत करूँगा ज़रूर, और अपना तरह का सॉन्ग ज़रूर गाऊँगा मैं। उसके पहले मैं विदा नहीं लूँगा, आप बेफिक्र रहिए। इरफान, आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू। यहाँ पे ऊपर वापस। इरफान, अमिताभ जी ने अभी रिसेंटली एक इंटरव्यू में कहा कि पीकू जो मूवी थी उसमें like the audiences watched the movie for Deepika Padukone. They came to the theaters only for Deepika Padukone and for no other reason. So I just want to know what is your reaction on that. I don't want to react for that. And वो जो कह रहे हैं उसमें कुछ तो सच्चाई है, क्योंकि Deepika is the biggest star, and Deepika was the diamond in the whole montage of actors. And मुझे खुशी है कि उन्होंने acknowledge किया Deepika को. All right, ladies and gentlemen, I think that's it. We end with a diamond. Hai now we'll have one nice picture, sir. I'll just take the mics. Yeah, koi mic le lo. Yeah, just 1 second. Ek second. 1 second. Can everyone just come a little ahead? Thoda aage aa jao, sab log.
Now, firstly, whenever any mainstream celebrity comes here, we need him to feel the Mithibai energy. Yeah, 1, 2, 3, make some noise! इरफान सर कैसा लग रहा है यहाँ पे आके? अब लग रहा है दम आया आवाज में। हाँ जी, बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट। सर मैं कहता रहता हूँ इस फिल्म के लिए कि देश सो रहा है, लेकिन यहाँ के बोलना अच्छा लग रहा है कि देश सो रहा है लेकिन स्टूडेंट जाग रहे हैं। Sir, before we move on to the whole, whatever we want to talk to you, we want to know a lot about the movie because we saw the trailer. I saw it on YouTube and I found it very interesting. So I think we need to see the trailer one more time. Let's see the trailer and after that we'll start talking about it. Yeah, can we have the trailer of Madaari, please? This film particularly was based on a real incident. Something happened and we were discussing about that, and we were just thinking about the accountability of the system. कभी भी कुछ होता है तो आपको अखबार में पढ़ने को मिलता है, न्यूज़ में पढ़ने को मिलता है, और किसी भी डिजास्टर से लाखों करोड़ों लोग की जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाती है, लेकिन कौन जिम्मेदार होता है हमें पता नहीं होता। तो ये फिल्म एक थ्रिलर है जी, थ्रिलर है, बट इसके कई बार क्या होता है ट्रेलर में आदमी जो फिल्म का जो बहुत अच्छा होता है सब डाल देते हैं, वो बचा कुछ नहीं रहता अंदर। इसमें सिर्फ ये थ्रिलर और इसका रिवेंज एंगल है, लेकिन इसके अंदर बाप बेटे का एक लव स्टोरी है, बहुत खूबसूरत लव स्टोरी है। एंड आई कैन एश्योर यू, जिनके बच्चे हैं छोटे और ये फैमिली के साथ देखने वाली फिल्म है, ये फिल्म देखने के बाद बच्चा बाप से लिपट के सोएगा, ये मैं आपको गारंटी देता हूं। But ये जो फिल्म है, you are also touching on a lot of other issues also, other than this thing, and I think that's fantastic also. Please give me a huge round of applause. So, it so happened that because of a certain piracy leak, the movie Great Grand Masti got released, and there was a situation that happened where the director requested that if they can swap the dates, and I think Madaari is a film that believes, and it's so special that I can host for something like Madaari that believes in its message to the core. I think it's fantastic, sir, that you guys have done a step like that and helped another person from the fraternity out also. Yeah, because the film got leaked long back, 10 दिन पहले leak हो गई थी, and they were in panic and they wanted to come earlier, and we already shifted our date. Now it was difficult for us to shift, but then it's better not to eat into each other's business, so we shifted the date. And piracy is something government should take it very seriously. It's the greatest threat to our industry. एक तो हॉलीवुड है, वो अपने आप में बहुत बड़ी थ्रेट है, जो सारे बच्चे जो हैं सब ज़्यादातर जो हैं हॉलीवुड की फिल्में देख रहे हैं, so that's why it should be taken very seriously. And I had to ask you this also, Nishikant Kamat as a director, how was the experience? Nishi and we have been working together for a long time. When he was in television, I did something for him. And then I worked with him in Mumbai Meri Jaan. But after Mumbai Meri Jaan, Nishikant changed his style of making. After that he made Force, then he made Drishyam, then he made another film as well. So now he's trying to make films for a larger audience. He made a Marathi film as well, which was also Le Bhari. So he's making a film which is for the larger audience. So that's how he has changed the gear, and he's a fantastic craftsman, and you'll see how he has played that thriller and emotional part, which is a very strange combination. Alright, so we're going to invite a few questions. I'd request members from the media, please keep the questions related to the movie, and also the students here, if you have anything to ask, please go ahead and ask right now. We can have a few questions from the media also. Just raise your hand, please. Thank you so much. So, anyway, moving on, sir, I had to also ask you, I've been hearing the song called Damadam also in it. What is the story behind this song? How was your reaction when you heard the song for the first time? So I was involved in the song, and I requested Vishal Saab that it should be composed in a way that should relate to youth. It should become a kind of voice of youth. They have angst, they have so many questions. So the song is actually is like a party song, but the lyrics are fantastic. You must hear the lyrics, and
it's asking many questions, reflecting about our country. So we have something planned also that we will want you to see after a bit. Yeah. In the meantime, can we have a few questions? Yeah, there we have a question. Why the name Madaari? Madaari, we were struggling with the title, and I chose a title called Dangal. And but our director Nishikant, he had some issue with it. He said Dangal in Maharashtra has a different connotation, so he was not okay with it. So I had to, then again think. And one night I decided that जो भी हो जाए मैं आज रात को टाइटल लेके ही छोड़ूंगा. तो रात को मैंने 8-10 टाइटल्स मैंने सोचे, and then Madaari, because we basically in system sometimes what happens that system और आम आदमी के साथ जो है जमूरा और मदारी का खेल चलता रहता है. वो अपने इशारों पे नचाते रहते हैं. तो कौन कब जमूरा बनता है, कौन कब मदारी बनता है, ये प्ले है इसमें. Yes, question from the back. सर आपको जानना चाहूँगा स्टूडेंट्स के लिए फिल्म कितनी इम्पोर्टेंट होगी? स्टूडेंट्स के लिए ही बनाई है यार हमने तो. इसीलिए मैं बार बार कॉलेज जा रहा हूँ. मैं कभी इतने कॉलेजेस नहीं गया. अब तो जब कॉलेज में पढ़ता था तब भी नहीं जाता था कॉलेज. अभी मैं ज़्यादा जा रहा हूँ कॉलेज. अच्छा, जब कॉलेज में आप थे और कभी कोई फेस्टिवल आता था तो उसके लिए आप कितने एक्साइटेड हो रहे थे? हम कॉलेज में होते ही नहीं थे तो कैसे एक्साइटेड. हम सिर्फ फेस्टिवल के दिन अपना मुंह दिखाने, मतलब इधर उधर ताकने, लड़कियां ढूंढने. हमें कोई भाव नहीं मिलता था, कोई हमें देखता नहीं था. लेकिन वही टाइम होता था जब आप जाते थे फेस्टिवल्स वगैरह में. डिबेट्स वगैरह होती थी, एंड हमें लगता था कि कौन प्राणी है जो डिबेट कर रहे हैं. कुछ अंदाजा भी नहीं था उसका. सर, अभी आप करियर के इतने ऊंचे मुकाम पर आप पहुंच गए, अभी कभी आपको लगता है कि कॉलेज के दिन वापस आ जाए? अरे यार ये इससे अच्छा वक्त होता नहीं है. ये तो आदमी इस वक्त पैदा हो रहा होता है, इस वक्त फॉर्म हो रहा होता है. इस वक्त की एनर्जी जो है वो कभी नहीं आएगी लौट के. सो जितना आपको इस एज में एक्सप्लोर करना है, ये एज फिर नहीं आएगी. प्लीज हैव अ ब्लास्ट. जितना एक्सप्लोर कर सकते हैं, जितना जान सकते हैं. अभी क्या होता है कि बार प्रेशर्स होते हैं हमारे ऊपर के आपने टारगेट फिक्स कर लिया कि मुझे ये बनना है, एंड देन विदाउट इवन अंडरस्टैंडिंग दैट इज इट योर कॉलिंग और नॉट, आप सिर्फ क्योंकि सिक्योर होने के लिए आप वो लाइन चूज कर लेते हो. एंड देन 10 साल बाद, 15 साल बाद मे बी यू हैव एस्टैब्लिश योरसेल्फ, बट यू हैव अ स्ट्रेंज काइंड ऑफ एम्प्टीनेस कि यार आई एम नॉट डूइंग व्हाट आई वांटेड टू डू, आई एम नॉट डूइंग व्हाट आई वांटेड टू डू. सो दिस इज द टाइम टू चूज, दिस इज द टाइम टू एक्सप्लोर एंड वेट. देयर इज नो हरी. Explore yourself and find the inner calling, and then dive deep, take a plunge and घुस जाओ अंदर. Yes. आपने लालू यादव के साथ प्रमोशन किया फिल्म का, क्या ऐसा रीजन रहा? आपने सिस्टम के खिलाफ पिक्चर बनाई है, तो लालू यादव साहब कितने रिलेवेंट लगे इस फिल्म को प्रमोट करने में? मैं और कई लोगों को मैंने न्योता भेजा. मैं जानना चाहता था, एक आम आदमी की तरह मैं मेरे सवाल है बहुत सारे, जैसे लोगों के सवाल हैं, वो सवाल पूछना चाहते हैं, तो किससे पूछें? बाबा रामदेव से तो पूछ नहीं सकते हैं. उनको ही भेजा मैंने न्योता. मैंने कहा कि आपसे बात करनी है एक आम आदमी की तरह, मैं आ सकता हूँ, क्यों फिल्म भी प्रमोट करनी है अपनी, और सवाल भी पूछूंगा कि हमारी फिल्म जो है इसी बारे में है. तो मैं नाचने गाने नहीं आ रहा हूँ, अब सिर्फ सवाल करने आ रहा हूँ. मैंने मोदी जी को ही भेजा, मैंने केजरीवाल को ही भेजा इन्विटेशन. तो लालू जी का आ गया. उन्होंने कहा हाँ ईद का मौका है. उन्होंने अपना देखा होगा कुछ, पता नहीं जो भी. वो यार पूरा फेसबुक पे अभी सारी कैसे बताऊँ, देख लीजिए आप. बहुत सारी उनसे बात हुई सिस्टम के बारे में. हमने उनके लिए 2 आइटम सॉन्ग भी रखे, वो वहीं एकदम से ध्यान में आ गए. तो एक था कि ये पब्लिक है, सब जानती है ये पब्लिक है, वो उसका राजेश खन्ना की फिल्म का. एक और है गाना, दूसरा कौन सा था याद दिलाना? वादा तेरा वादा, वादे पे तेरे मारा गया, बंदा ही सीधा साधा. Yes. So how was it different working in Hollywood movies from Bollywood? It is very different here because that industry is making films for the world audience. So in their film the behavior or the character exposition, character build-up is much more credible and much more detailed. हमारे यहाँ कई बार क्या होता है, we take a subject, but वो subject जो है launching pad होता है हीरो को हवा में उड़ने के लिए. उसके बाद उस subject से कोई लेना देना होता नहीं है. आप देखें किसी कमर्शियल फिल्म में सडनली बांग्लादेश से कितने लोग निकले और कितने मर गए और ये सारी बातें हो रही है, उसके बाद फिर कहीं चली जाती है स्टोरी. तो हमारे सब्जेक्ट को एक्सप्लोर नहीं करते हैं. अभी टाइम दूसरा है. अभी के कुछ नए डायरेक्टर्स जो हैं, दे आर मेकिंग फिल्म्स
which is trying to explore the subject like नीरजा हो या अभी जो पंजाब की फिल्म थी उड़ता पंजाब, और जो हमने भी कुछ ऐसी फिल्में बनाई हैं, तो now things are changing, but basically our Indian commercial cinema it doesn't bother about to explore the subject, but Hollywood cinema has been doing it for long. Yes. इरफान सर, आपका इस मूवी में लुक थोड़ा डिफरेंट है, आपने बाल बढ़ाए और आपकी दाढ़ी वाड़ी भी, तो उसके बारे में बताएंगे कि क्या लाइक लुक? हाँ, इसमें क्योंकि वही सबसे ज़्यादा ट्रिकी, सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग पार्ट वही था, क्योंकि कभी बाल बढ़े हुए हैं, कभी छोटे हैं। अब हमारी फिल्मों के बजट इतने बड़े तो है नहीं कि आप आराम से शूटिंग करें। वो तो मारा मारी में गोरिल्ला वॉर टाइप शूटिंग करते हैं हम लोग। तो उसमें वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम था एक्चुअली। और क्योंकि एक आदमी का, एक आम आदमी होते हुए देन उसके साथ क्राइसिस होता है, देन इसका जर्नी जो है उसमें उसका फिर जो है लुक चेंज है कई जगह। तो दैट वाज वेरी चैलेंजिंग पार्ट एक्चुअली टू मेंटेन दैट। मैंने एक फिल्म की थी पान सिंह तोमर। वो फिल्म बनने के बाद 1-1.5 साल वो वहाँ यूटीवी के अंदर स्टोरेज में आराम कर रही थी। तो मुझे बहुत तकलीफ होती थी। मैं कई लोगों को लेकर भी गया, यूट्यूब से बात करवाई कि जो फिल्म है आपको अगर पसंद नहीं आ रही तो हमें दे दीजिए, जितना पैसा आपका खर्चा हुआ आप ले लीजिए। तो उन्होंने कहा हाँ बात करते हैं करते हैं। आई वॉज फीलिंग वेरी हेल्पलेस दैट टाइम। उस वक्त मुझे लगा कि जब भी मेरे में इतनी क्षमता हुई कि मेरा एटलीस्ट इतना कंट्रोल रहे कि मैंने अगर कुछ काम किया है तो वो लोगों को दिखा तो सकूँ, उसका डिसाइड कर, उसके डिसीजन में मेरा कुछ तो मेरा हाथ हो। ऐसा ना हो कि कोई प्रोड्यूसर के लिए आपने काम किया वो बोल रहा है कि मैं डीवीडी पे रिलीज कर दूंगा, तो वो उस चीज़ से मैं बहुत डरा हुआ था। तो इसमें ऐसे हालात बने कि मैं प्रोड्यूसर बन सकते हैं, तो इसलिए मैं प्रोड्यूसर बना। इरफान, कितना डिफिकल्ट रहा आपसे ये प्रोड्यूसर का समय? मेरा एक्चुअली प्रोडक्शन का जो काम था वो सिर्फ इतना था कि टीम अरेंज करूँगा, बाकी पैसा वैसा कहाँ से आएगा कहाँ जाएगा उससे मैं, वो अगर होगा तो मैं छोड़ दूंगा बोलना, वो मैं कभी नहीं कर पाऊँगा। सिर्फ कि डायरेक्टर कौन होगा, राइटर कौन होगा, किस तरह का सेटअप होगा, इन सब क्रिएटिव डिसीजंस मैंने लिए थे। बाकी मेरा कोई नहीं योगदान नहीं है। No, not at all. No politician, no party. It's about all the parties, all the politicians and everybody. 125 करोड़। बॉम्बे में हुई, यहाँ हुई, अपना राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, जैसलमेर, पंजाब, 4-5 जगह पे ऐसे हुई है। Yes. सर, आप पान सिंह तोमर, you have done पान सिंह तोमर, और उसमें आप एक आर्मी से रिलेटेड उसमें थे पहले स्टार्टिंग। तो इज देयर एनी प्लान कि नेक्स्ट आप कोई डिफेंस रिलेटेड मूवीज करोगे इस पे आर्मी ऑफिसर के ऐसा कुछ? कहानी होगी तो ज़रूर करेंगे यार। आर्मी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि बहुत कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है। हमने इंटेलिजेंस एजेंसी पे एक फिल्म की थी, डी-डे रॉ, जो हमारा एनालिसिस विंग है, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। कभी अगर अच्छी सब मिलेगा तो ज़रूर करेंगे। आर्मी इज ए फैसिनेटिंग सब्जेक्ट। अलग अलग टाइम पे अलग अलग, जब आप टीनेजर थे किसी को करते थे, फिर वो बदल गया, फिर बाद में शुरू में हम दिलीप कुमार को करते थे, फिर मिठुन चक्रवर्ती को भी बहुत करते थे। मेरा फेस किसी ने बोल दिया था, गलतफहमी दिलाई थी मुझे, गलतफहमी करवाई थी कि मेरा फेस उससे मिलता है। मैं बार बार आईना देखता था, बार बार मेरा देखता था कहाँ से मिलता है, और गलतफहमी हो जाती है, टीनेजर हो जाती है। और फिर मेरे बाल जो है बिल्कुल ऐसे हार्ड कर्ली बाल थे, उसके सीधे बाल थे ऐसे सॉफ्ट। तो मैं बहुत कई बार जाता था बाबा के पास कि यार बाल थोड़े से सीधे कर दो, कैसे भी करके वो कर तो देते थे। एक दिन ब्लो ड्राई किया तो सीधे तो हो गए, लेकिन नेक्स्ट डे तक वो ऐसे कुछ हो जाते थे, और मैं बहुत परेशान होता था। नसीर साहब ने बहुत इन्फ्लुएंस किया, ब्रांडो हैं, फिलिप्स और हॉफमैन है, डेनियल लुइस है, लिस्ट लंबी है, महात्मा गांधी हैं, बहुत सारे लोग हैं। Sir, Abhi, when you're chilling in Hollywood, with all those, who do you admire in Hollywood right now? Like, I mean, since we all know that you have a lot of friends in Hollywood anyway. I think right now I've just done a film with Tom Hanks. And I was going to ask you that. How was the experience? Outstanding experience, and you won't even believe what kind of person he is. He's such a nice, beautiful human being. He is, and he's so warm.
and he doesn't have the insecurities which generally actor has. जो एक्टिंग की लाइन ऐसी है, इसमें कभी कोई सिक्योरिटी, कोई गारंटी नहीं होती है. आप 70-75 साल के हो जाएं तो भी आप स्ट्रगल ही कर रहे होते हैं, देखते रहते हैं कि अगली बार ऐसा तो नहीं मुझे कोई पहचानेगा नहीं. तो ये बड़ा डरा हुआ होता है एक्टर जो आदमी होता है. But something that you learned from, Tom Hanks, his graciousness. Yes. And his ease, the way he acts, is like the way our folk actors are. जो बहुत ज़्यादा सोचते, मतलब बहुत ज़्यादा उनका क्राफ्ट दिखता नहीं है. उनको बोलो वो इमीडिएटली, कुछ भी बोलो इमीडिएटली उनके अंदर से निकाल देते. कुछ होते हैं इनबॉर्न एक्टर होते हैं, नेचुरल होता है उनमें. मुझे लगता है टॉम हैंक्स शायद उस तरह के एक्टर हैं. Anyway, so we will move on. We have a video called Masoom Sa that we would like to ये see. एक और गाना है, प्लीज Yes. सुनिए. मैं जो बाप बेटे के रिश्ते की बात कर रहा था, ये गाना प्लीज सुनिए. Yes, we'd like to see that, sir. If you could please. We're gonna have that right now. All right. Can we have this screen? So all of you guys have heard Damadam, and as sir said, it's like the new age party song. So we've prepared a small little dance, and we'd like you to see it. Yeah. So we'll see how we can party, because we know how you made that lovely party song on YouTube. Remember? Anyway, so ladies and gentlemen, by Paparazzi presenting Damadam. I hope you liked this little beautiful gift that we had for you. And sir, since you're here, and this is a thriller, and a lot of dialogue, sir, we need to hear a dialogue from the film, sir. Dialogue तो बनता है कि नहीं? है कि नहीं? है कि नहीं? बाज चूजे पे झपटा उठा ले गया. कहानी सच्ची लगती है लेकिन अच्छी नहीं लगती. चूजे ने पलटवार किया, कहानी सच्ची नहीं लगती लेकिन खुदा कसम बड़ी अच्छी लगती है. Goosebumps. Anyway, so we have a few contest winners. Can I have the names, please? Can I have the names? Yeah? Can I have the names, please? Quickly. All right. So we had a small little competition on Facebook, and a lot of entries came in, and we've got 3 winners who I'd like to call on stage. Can we have them, please? Can I have Janvi Sharma, Jinal Sangvi, and Devika Shirpurkar on stage, please? Aye, jaldi, please give them a huge round of applause. Who's the contest? Sir, you'll have to ask them. I just came today morning. Anyway, aye. Please. They're your very big fans, sir. Yes. Yes. So what was the contest? Came to our country, ravaged it. I cannot marry a Muslim. She said, few of yours entered my sister, ravaged it. I cannot marry a man. Wake up, India. So, I think you guys want to take your pictures. I think you should go ahead right now. Please give them a huge round of applause. What beautiful thoughts. Fantastic. Yeah. No, before you go. So, I'd like, sir, if you could please give them out these t-shirts, unveil the t-shirt and give them, it'll be very nice. The Madaari t-shirt for you guys.
क्या बात है. Once again, huge round of applause, everybody. Fantastic. All right. If you have any more questions, I think now would be the right time. And yeah, there we have a question. आपने recently एक सुनने में आया था कि Facebook या you went live somewhere shirtless for the promotion of this movie. शर्टलेस की जाने की जरूरत नहीं मुझे. मेरे पास बहुत सारी चीजें और दिखाने की. जिस दिन कुछ नहीं बचेगा उस दिन शर्ट खोल के दिखाना शुरू करूँगा. Irfan, you're obviously known from the industry. You're known someone who always, expresses his opinion on topics, various topics. तो मुझे सिर्फ पूछना है, recently सलमान का जो rape statement का controversy हुआ था. सलमान का rape हुआ? Rape statement. He passed a rape statement. तो आके चला गया, picture भी आ गई. Yeah, I know. I think you can keep it related to the film. It would be better. I just want to ask one thing. Many from the Bollywood industry didn't wish to comment on that because they felt that they were under some pressure because it was Salman Khan. So I just want to know कि did you receive any such like? आपको सबको पता है इंडस्ट्री छुपी हुई थोड़ी है. इंडस्ट्री जैसी है सब न्यूज़ तो आती रहती है. अभी पायरेसी का इतना बड़ा इशू है, इसी पे साथ में नहीं आ रहा है. मतलब एक तो आप गवर्नमेंट से डिमांड कर सकते हैं कि हमें पता चलना चाहिए कहाँ से पायरेसी हुई. This is their responsibility. We are paying 1,000 crore tax, 4,000 crore tax every year. So it's their responsibility, it's their accountability. But दूसरी चीज़ ये है कि इस इंडस्ट्री को साथ में आना चाहिए. बट इसी में भी नहीं है कि यार मेरी पिक्चर तो निकल गई ना, बाकी तुम जाओ बाढ़ में. तो वो है अपना एटीट्यूड, वो है तो है, क्या करें. कि बॉलीवुड सो रहा है क्या, वैसे कैसे? अभी देश ही सो रहा है तो बॉलीवुड क्या? Yes, ma'am. आपको भी डर लग रहा है कहीं? Ma'am, one second, ma'am. See, it doesn't boil down to industry responsibility. It is everybody's responsibility to themselves. Either are you getting biased? Are you getting opinionated through media? That's your responsibility. You have to find facts. You have to understand what is the strength of India. Hindustan की खूबसूरती क्या है? You have to understand. And let not TV and media color your opinion. You have to understand. We are मेरा भी कुछ controversy हो गया था. And मैंने एक simple सी बात कही थी कि we lose sometimes the purpose of doing some ritual, and we blindly do it, so it distorts. कई festivals ऐसे हैं जिनका मकसद कुछ और था और आज कुछ और बन गया है. So this is what we are. That's how we are sleeping. We are not really understanding. Yes. We are not aware, we are being led by whatever is happening around us. Either consumerism आप पे फेंक दिया. Now everybody has a desire कि मेरे पास ये हो, मेरे पास ये हो, मेरे पास ये हो. और आपके अंदर desire जगा दिया है. You are not control of your desires. We are not in control of our desires. मीडिया ने आपको एक opinion बोली, आपको लगा कि हाँ यार ये ठीक है, मुझे belong करना चाहिए इस group से. Then you will blindly start following that group. And you will not really be critical about that. So it's your own self. You are not responsible. You are sleeping on your own self. And that's the greatest injustice you can do to yourself. You are a live human being. You have all the senses. It's the only species that God has given the faculty of understanding, analysis, thinking, subconscious. और किसी उसमें नहीं है. एक जो जानवर होता है उसको अगर बचपन में आपने कंडीशन कर दिया कि वो डरेगा तो मरते दम तक डरता रहेगा एक डंडे से. इंसान में नहीं. इंसान has a power to overcome that, to overlook that, and that's what we are not doing. Yes, we'll take one last question. We'll take one last question from the girl right there. Sir, do you miss theatre? I do miss. तब actually मैं जब पीछे से घुस रहा था मुझे exactly मुझे लगा LSD के दिन याद आ गए थे. And I do miss, but मुझे ना तो ऐसी स्क्रिप्ट मिली है जिसको कि मैं 1 महीना 2 महीना करूँ और बोर ना हूँ, या मुझे कुछ सर्कमस्टेंसेस बने नहीं है, बट मैं करूँगा जरूर थिएटर, जल्दी करूँगा आपके लिए. Sir. All right, I think we're done with our round of questioning. Okay. अब तक आपका सबसे डिफिकल्ट रोल कौन सा रहा है जो? अभी तो यही लग रहा है कि आप लोग आ जाएं देख लें उसके बाद.
All right. So we're very, very grateful that you've come here. Please give me a huge round of applause. And I think, and this is a small token of our gratitude. I request Nubur ma'am to please come and felicitate Irrfan Khan for this lovely gesture. Yes, can we have Nubur ma'am also? Please give her a huge round of applause also. Diksha ma'am. Okay, Diksha ma'am, yes. I think they were trying to change the strategy and they thought that this film has to come out. वो कुछ होते होंगे reasons, but they also believed in the film, but they didn't want to spend the money on publicity of the film, and because they had one sister concern which was called Spotball, and that was not doing well. So this film fell in that category, and that's how उन्होंने शायद मजबूरी में क्या इसको जरा जो है हमें सफाई करनी घर की इसको निकालो, तो उन्होंने उसको बाहर किया विदाउट पब्लिसिटी. एक बैनर उन्होंने लगाया था लोखंडवाला में. बट दैट इज द टाइम आई अंडरस्टूड व्हाट इज द पावर ऑफ वर्ड ऑफ माउथ. एंड कैसे छेड़ा था, तो एक लड़का बोलता है भैया जी ला कर रहे हैं, राइट. वो एक सीन है जो मुझे अभी भुलाया नहीं भूलता है. दैट वाज आई थिंक वन मेजर टर्न अराउंड इन हिज करियर, व्हिच आई बिलीव पर्सनली. यू मे थिंक डिफरेंटली, बट थैंक यू so much for coming to Mithi Bhai and Paparazzi. Wish you all the best for your movie and all the I would like to thank Yash also from Saya Group. Please, can we have Yash also? Please give me a huge round of applause also. Yes. Thank you so much. And he's been telling me, please announce, please announce, please announce. I think he's done a fantastic job. He's the guy from Saya Group, so he's the guy responsible for all of this. Yeah. Thank you so much. A young entrepreneur, so that's the thing. Anyway, so I think one last thing is left to do, sir. What is the Saya? You want to say something? Okay, so basically, Saya Group is. You want to go for it? Go. It's your company. It's not mine. Saya Group is basically an artist, celebrity and event management company, and we've associated with Paparazzi for this promotional event for Madaari, since we are all great fans of yours, sir, and we just wanted to have an event with you. So thank you so much for coming, it really means a lot, and yeah, thank you so much. All the best. Thank you. Sir, एक चीज बनता है. I think we have to take a picture with everybody. Yes. ये लोग क्यों उठ रहे हैं? नहीं पीछे. Why don't you guys sit down. ये लोग सब आएंगे कैसे? हम तो जुड़े हुए हैं फिल्म से, सो बट उसके बाद भी मैं बहुत भावुक हूँ, बिकॉज आई थिंक वी आर वेरी ऑनर्ड दैट वी आर एसोसिएटेड विद मदारी एज पूजा फिल्म्स. एंड इरफान सर की एक्टिंग के बारे में मैं जितना कम कहूँ उतना बेटर है, बिकॉज वो तो मतलब हर फिल्म से और बेहतर होते जा रहे हैं. तो मैं अगर कहूँ इरफान खान ने अच्छी एक्टिंग की तो वो एक्चुअली मजाक लगेगा, बिकॉज दैट इज़ द मोस्ट ऑब्वियस थिंग. लेकिन उन्होंने जो दिल को छुआ है और जैसे अपने कैरेक्टर को अप्रोच किया और जो फादर और सन का रिलेशनशिप है, इट्स अमेजिंग.
मैं तो कहूँगा कि पीएम साहब को, मोदी साहब को दिखानी चाहिए फिल्म। और ये फिल्म मैंने ये पहले भी कहा कि इट्स नॉट अबाउट हम किसी पॉलिटिक्स या किसी इंसान पे पॉइंट करें। मैंने ये कल भी कहा कि अगर हम उनकी जगह होते तो शायद हम भी करप्ट होते। सो वो हमें अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। So that's it. हाँ या एक्चुअली निशी सर ने मुझे प्रॉमिस किया है कि वो मुझे एक फिल्म ज़रूर देंगे एज एन एक्टर, तो मैं ऑडिशन देने जा रहा हूँ अंदर। थैंक यू। अभी सोलो सोलो चाहिए पकड़ने का अभी सोलो 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 मैडम इधर यहाँ पे एक सामने सोलो सोलो चाहिए मैडम सामने सर यहाँ पे यार एकदम सामने भाई सर यहाँ पे एक सर यहाँ पे एक साथ में यहाँ से लेफ्ट कॉर्नर सर यहाँ पे लेफ्ट सर अरे वो तो बहुत दूर निकल गई, अब तो वो बहुत दूर निकल आप आते नहीं। मैंने नहीं देखी, मैं फिल्म देखने ही आया हूँ। देखिए इरफान सर हैं और निशिकांत कामत जैसे डायरेक्टर हैं, तो मतलब आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सेट दैट ए रियली गुड फिल्म। हाउ आर यू डूइंग? आई एम गुड। मैडम थोड़ा सा आपके लेफ्ट में सब पॉलिटिशियन को दिखानी चाहिए। तो उनकी फिल्म का टैगलाइन है कि देश सो रहा है। ये बहुत ज़रूरी है कि सब लोग जाने इस बारे में कि देश को जगाने का वक्त आ गया है। थैंक यू। जरीन जी आपके लेफ्ट में नीचे मैडम जरीन मैम यहाँ पे लास्ट कॉर्नर लेफ्ट 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 लास्ट यहाँ पे लेफ्ट में लास्ट। एक्सक्यूज मी जरीन जी मैम यहाँ पे मैडम यहाँ पे एक लास्ट। जनाब एक मिनट जी जी मैडम एक्शन सर एक्शन सर एक्शन एक्शन सर एक्शन राइट राइट जनाब यहाँ पे देखिए सर राइट साइड सर लेफ्ट लेफ्ट सर लेफ्ट लेफ्ट सर लास्ट कॉर्नर सर लेफ्ट में सर लेफ्ट आराम से यहाँ पे और सर यहाँ पे अभी जनाब यहाँ पे लेफ्ट सर यहाँ पे सेंटर में हाँ तेरे साथ निकाल इरफान सर यहाँ पे सर यहाँ पे सर आपका लेफ्ट सर कॉर्नर जी बहुत सर आपके लेफ्ट में एक्शन यहाँ पे सर राइट साइड सर सामने यहाँ पे सर सर लेफ्ट 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 सर सामने एक लास्ट सर एग्जैक्ट सामने सर इरफान जी यहाँ पे ये बोला उसको इधर हाँ हमने किसी को नहीं दिखाई अभी तक। नहीं हमने फिल्म किसी को भी नहीं दिखाई। हम चाहेंगे कि अगर ऐसा प्लेटफॉर्म हो जाए जहाँ
सोनिया जी, मोदी जी, अरुण केजरीवाल जी, राहुल जी, अमित शाह जी सब मिल के एक ही हॉल में बैठ के अगर फिल्म देखें, हम चाहेंगे ऐसा माहौल बन जाए। कोई भी फिल्म देखें, चाहे हमारी देखें, किसी की भी देखें। होता था ना, ऐसा होता था पहले, मतलब ऑपोजिशन वाले लोग आपस में मिलके बैठते थे, डिस्कशन करते थे, ऐसा होता था ना। तो ऐसा माहौल और बन जाए तो अच्छी बात है। नहीं, हम तो विश कर रहे हैं। और आगे अभी कल परसों से स्क्रीनिंग्स करना शुरू की है एंड टच वुड अच्छा है रिस्पांस। एक्चुअली जो ये लोग पूछ रहे हैं कि आप क्यों गए मिलने के लिए पॉलिटिशियन से, क्योंकि ये एक तरह से एक्सटेंशन है हमारी फिल्म का। जो हमारी फिल्म बात कर रही है उसका एक्सटेंशन है, क्योंकि फिल्म में आप इतना लंबा डिस्कशन नहीं दिखा सकते हैं। फिल्म एक कहानी होती है, उसमें एक मुद्दे को आप छू सकते हैं, उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं इमोशनली, लेकिन ये सब बातें नहीं हो सकती हैं। तो ये सब बातें जो फिल्म करते वक्त और उसके पहले और उसके आसपास जो आपके सवाल उठते हैं, तो हमें लगा कि ये इस फिल्म की कहानी को एक्सटेंड करना होगा, तो हमने वही किया। क्योंकि कोई है ही नहीं और इस फिल्म के अंदर। और क्या होता है कि आप इस फिल्म में थोड़ा सा ये है कि आपकी ओपिनियन मैटर कर रही है। बाकी पहले जो भी फिल्म करते हैं उसमें और भी लोग होते हैं और टीम जो है उसको पूछते हैं हम कि ये ऐसा क्यों करें, बोलते हैं कि इसलिए करो, तो हमारा एतराज़ होता है तो भी नहीं माना जाता, जो बोलते हैं हम करते रहते हैं। इस फिल्म के अंदर क्योंकि ये हमारी फिल्म है, इसमें हम भी पार्ट प्रोड्यूसर हैं, तो कई बार कुछ चीज़ें हम बोलते हैं कि नहीं यार ऐसे नहीं ऐसे करो, ऐसे नहीं ऐसे करो, तो कुछ ओपिनियन मैटर कर रही है हमारी, तो इसलिए शायद। स्कैर्ड? Oh, that's a huge threat. That's the biggest threat. हॉलीवुड से बड़ा थ्रेट जो है पायरेसी का है, और ये ऑनलाइन जिस तरह से लीक हो रहा है। आई विश इंडस्ट्री, ऑल द इंडस्ट्री ऑफ इंडियन इंडस्ट्री ऑफ डिफरेंट रीजन्स कैन कम टुगेदर and put kind of ask the government that we need it to stop. यार प्रोड्यूसर्स को बोल रखा है कि भाई आप केयरफुल रहिए, तो ले रहे हैं, कुछ होते हैं प्रिकॉशंस होते हैं, लेकिन कितना वर्क करते हैं मुझे पता नहीं उसकी टेक्निकलिटी। आई एम रियली थैंकफुल एंड मेरी फिल्म जो है कबाली के साथ भी रिलीज़ हो रही है, उसके लिए मैं बहुत ऑनर्ड हूँ। मुझे लगता है कि जब मैंने दोनों पोस्टर एक साथ देखे, रजनीकांत जी का और मेरा एक साथ लगा हुआ, तो मुझे लगा कि रजनीकांत जी मेरी फिल्म को आशीर्वाद दे रहे हैं, और मेरे लिए इससे अच्छी खुशी की कोई बात नहीं है कि मेरा ही पोस्टर लगा हो, रजनीकांत साहब का ही पोस्टर लगा हो। आई थिंक इससे बड़ी ब्लेसिंग मेरे लिए नहीं है कोई। हाँ, मेरी मैडम मतलब मेरी मैडम कौन? हाँ, तो क्या आपको क्या लगता है कि वो मुझे सुबह उठ के कच्छा पहनाती है, ये पैंट पहनाती है और बोलती है कि मेरे बाल ऐसे करो, टेढ़े करो? ये तो ऐसे ही है, बहरूपिया लोग हैं हम लोग, बहरूपिया लोग रंग बदलते रहते हैं ना जी। पीछे उसको भी जाकर अमित जी सर यहाँ से लास्ट कॉर्नर, सर यहाँ पे आपके सामने, सर लास्ट कॉर्नर, इम्तियाज सर, सर यहाँ पे सर यहाँ पे राइट पे, सर लास्ट कॉर्नर आपके लेफ्ट में इम्तियाज सर, आया फोटो है this one kind of you're looking at it just like woken up from a hangover. क्या चल रहा है? ठीक ठाक है सर, कैसे हो आप?
आप इधर आ जाओ ना सर, मैं आपसे बात करूँगा, कितना मज़ा आएगा। देखिए मैं निशिकांत कामत को बहुत पसंद करता हूँ एज अ डायरेक्टर। मुझे लगता है कि उनकी हर फिल्म में कुछ ना कुछ बहुत थॉटफुल होता है। उनकी बहुत सारी फिल्में मैंने बहुत इंजॉय की हैं निशी की। तो मैं आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड। आई थिंक इट विल बी अ वेरी नाइस इंटरेस्टिंग फिल्म। Irrfan is a very, very exciting actor of our times, and I always look forward to watching films with Irrfan. So I don't know much about this film. Luckily, I don't know much about this film, and I'm really looking forward. After it's over, I can tell you how it was. ऐसी कोई अनाउंसमेंट तो किया नहीं है उसने। I'm going to ask him what he said and confer with him, and then I'll come back and I'll tell you. It's my promise. It's a very sad thing. I feel piracy, people do not understand what kind of a serious crime it is. The audience that does indulge also in piracy does not realize how it is hurting those people, the actors, the directors, the movie makers that it loves. They should really think about it. I don't know what will happen, whether theatres will be shut or not, but I do feel that piracy is very, very harmful for the film industry, and people should realize that. जी जी हाँ जी हाँ जी हाँ। एक्चुअली सर ऐसा है कि फिल्मों का ऐसा होता है ना, मैं प्रोड्यूसर नहीं हूँ इस फिल्म का, और एक मिली भगत में एक प्रॉपर अनाउंसमेंट के साथ आएंगे तो बेटर होगा। तो मैं आउट ऑफ टर्न कुछ बोलना नहीं चाहता हूँ यार फिल्म के बारे में। आई एम वेरी सॉरी। थैंक यू सर, थैंक्स। हेलो। वेल इट्स इरफान सर की मूवी है तो अच्छी ही होगी, क्योंकि मैं उनकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। आई थिंक ही इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर्स दैट वी हैव, एंड आई थिंक मदारी का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही सेंसिटिव, बहुत ही इमोशनल है। सो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड फॉर द मूवी, एंड आई एम श्योर इट्स गोना बी अ ग्रेट मूवी। फेवरेट पॉलिटिशियन? वेल मुझे पॉलिटिक्स के बारे में इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं है, तो मैं झूठ कुछ भी नहीं बताना चाहूँगी और बोलना चाहूँगी कि हाँ मुझे बहुत नॉलेज है। बट ये इरफान सर की फ़िल्म है, और आई एम श्योर ही नोज़ कि उनको किसे दिखाना है किसे नहीं। सो आई थिंक वो डिसीजन हमको उन पर ही छोड़ना चाहिए। वो मुझे कैसे पता होगा? मैं सलमान खान थोड़ी हूँ, तो आपको सलमान खान से पूछना होगा। आज हम मदारी के लिए यहाँ पे आए हैं, हम मदारी के बारे में बात करेंगे। सलमान की शादी और वो सब के बारे में आप प्लीज़ सलमान से पूछना, मुझे कोई आइडिया नहीं है। थैंक यू। वेल ऑब्वियसली इरफान सर तो इस समन जिनको हम सब उनकी एक्टिंग से सीखने की कोशिश करते हैं जितना हो सके, एंड आई रियली लव हिम एज एन एक्टर, एंड आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू द फिल्म। ट्रेलर बहुत ही अच्छा लगा है, बहुत स्ट्रॉन्ग है। सो या आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू अ नाइस मीनिंगफुल फिल्म। And I'm back in front of you guys after such a long time. So how was it? How was the shooting schedule at Budapest? It was amazing. I was really it was hectic because I mean I've never been away for so long from home. 2.5 months at least, yeah, 2.5 to 3 months, which was the longest, my longest stayed abroad. But it went really well.
very good stuff we shot. 70% of the film is done. So yeah, of course it felt very good. Yes, एक दो बार में. I'm very injury prone. I'm very clumsy. So yeah, I keep falling on the sets. But उस बार मेरी कोई गलती नहीं थी because बारिश हो रही थी and I was running, so I slipped. I think initially I thought it's best not to react because it's part of the industry. This happens every time you work with someone. But I clarified, I said what I had to say online. Beyond that, I have nothing more to say. I think आप लोगों ने मुझे already बहुत सारे holidays में भेज दिया जिनमें मैं गई नहीं हूँ. So yeah, I wish I was actually going on holidays that much. It's I really don't know what to say in that. Yeah, it's the easiest thing to assume. I said what I wanted to when it reached a point where families started getting involved, which is a little nasty, I think. So I just mentioned what I wanted to online. That's all. Sorry. Yes. I think मूवी अच्छी होगी और इरफान सर ने जो काम किया है वो देखने के लिए बहुत उत्साहित हैं और फिल्म देखने के लिए उत्साहित हैं. That's very sad. It's very sad for our industry and we work very hard. But I think it's violating and people should stop doing it. It's not that theatres will be shut and we won't be producing films, but then there will be internet films, I guess. Well, that's a very long subject and very vast subject. But the thing is that this sort of stealing is not acceptable in any society, and we have to make sure that we don't encourage such a behavior, and it's bad behavior. All right. अरे काय के लिए उधर आवाज देने के बाद इधर किसका जी एक मिनट राइट साइड किसका जी यहां पे मैम वन को राइट साइड मैम लेफ्ट देखिए एकदम सामने आप मैम राइट साइड मैम लेफ्ट सेंटर फर्स्ट सेंटर मैम ये लेफ्ट इसका मैम अरे ये कने बोला ना रे सर यहाँ अरे पिक्चर तो देखने दो अरे तू क्या है थैंक यू. हाँ जी. कुछ नहीं, इसको ब्रेड बोलते हैं. बारिश वैसे भी है तो बाल बहुत फ्रिजी हो जाते तो बेटर है बांध लो. इरफान खान की फ़िल्म हमेशा टॉक ऑफ द टाउन होती है. उनकी फ़िल्में हमेशा बहुत सराही जाती है सभी लोगों से. तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ मदारी देखने के लिए. आई मीन
पोस्टर अपने आप में एक बहुत यूनिक है, सो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड। वो किस चीज़ के लिए विश करूँगी मुझे नहीं पता है। अगर उन्होंने कहा है कि 18 नवंबर को शादी कर रहे हैं, तो जब शादी होगी तो डेफिनेटली मैं जाऊंगी उनको विश करने के लिए। थैंक यू। जाता ना प्लीज जरा रिक्वेस्ट बताइए। हाँ मैंने देखी है यार फिल्म मदारी। यार आपको पता है मैंने बनाई है, एटलीस्ट उतना तो सोच लो यार। नहीं सीरियस सिनेमा, एंटरटेनिंग सिनेमा, एंड आई होप सबको पसंद आए। आज जो लोग देखने आए हैं बहुत दिलो जान से बनाई है। बाकी लेट्स सी आगे क्या होता है। थैंक यू। बहुत अच्छी फिल्म है। इरफान undoubtedly has done amazing work, and as a script Nishikant has done a brilliant job. Congrats for the new car. Oh thanks, it's not new anymore.
It's great. बहुत अच्छी है सबका performance. Of course, Irrfan is fantastic. He is a fantastic actor. And Nishikant has made a very good film, and I want to wish them all the luck. Ma'am, your upcoming pipeline Well, the film is fantastic. I'm extremely overwhelmed. It's a film that's really necessary in today's time because our country as a whole is going through certain issues, and this film speaks about it in a very beautiful way. It speaks about different kind of relationships, and it's a beautiful, beautiful, beautiful film, and Irrfan sir is fantastic. And I really want to congratulate the entire team, Nishikant sir, Jimmy Shergill, everybody, the Lil Kid, everybody was fantastic. Please go watch the film. It's really nice. बहुत स्ट्रॉन्ग फिल्म है और आई थिंक इस साल की सबसे ज़रूरी फिल्म है. सबको देखनी चाहिए एंड इट्स गॉट अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज एंड अ वेरी 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 वेल मेड फिल्म. इरफान सर, जिमी सर, निशिकांत सर, सबने बहुत, आई मीन इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फिल्म एंड अ वेरी वेरी गुड फिल्म, वेरी गुड फिल्म. थैंक यू. It's a fantastic film, and Irrfan Khan is a fantastic actor. Apart from him, I think everybody in the film is really good. Jimmy Shergill was very good. Of course, we have to mention the director, Nishikant, has done a fantastic job. The editing was crisp. The whole film was really, really good, entertaining. You guys should catch it on Friday. फिल्म बहुत ही ज़्यादा इमोशनल थी, बहुत हार्ड हिटिंग थी, एंड बहुत ही अच्छी फिल्म है. आई थिंक सभी को जाके देखनी चाहिए. इट हैज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज, एंड Irrfan sir as usual is mind blowing, and right now I'm a little choked for words, so I think that's about it. Thank you, bye. बहुत कमाल है. ऐसा लगता है कि कभी किसी ने बोलना चाहिए, कभी किसी ने उठाए सवाल, तभी कोई जवाब मिले ना मिले, लेकिन सवाल उठाने चाहिए. और एक बहुत अच्छी बात लगी मुझे इसमें कि कहते हैं कि अगर रिवेंज लेना है आई फॉर एन आई, और उससे फिर डैमेज ज़्यादा होता है.
और टेम्परेरी जवाब मिलता है, पर उससे जो इम्पैक्ट होता है वो सालों चलता है। तो मेरे ख्याल से इसको दोनों को मद्देनज़र रखते हुए बहुत अच्छी फिल्म बनाई। और इरफान खान हमें मिला है, हमारी फिल्मों में वो काम कर रहा है। मुझे लगता है वो आई एम फॉर्चुनेट टू सी हिम इन माई टाइम, such a fine actor. Okay, and Nishikant Kamat, of course, make a brilliant film. All the very best. Please, I don't like to say this, but every Indian must see the film, and every movie watcher has to. Yes, it's brilliant. It's very moving, very relevant, and Irrfan sir he's beyond brilliance. He's so amazing in the film. Yes, thank you. हाँ, साथ में आ गए साथ में, ठीक है अभी। He was missing you a lot. मुझे बहुत अच्छी लगी। आई थिंक बहुत रेलेवेंट फिल्म है और आंसू निकले। Yeah, it's very emotional. बहुत इमोशनल है और इरफान सर इज आउटस्टैंडिंग, ही इज जस्ट आउटस्टैंडिंग। Oh, thank you यार। थैंक यू। शादी तो बहुत दूर की बात है, अभी तो हमने खुद ही नहीं सोचा उस बारे में। वो तो बहुत अभी हमने खुद ही उस बारे में सोचा। अभी हम दोनों अपने करियर में फोकस हैं, अपने फिल्म से मेहनत करनी है। इतने इरफान सर जो हमें इंस्पायर कर रहे हैं अपनी परफॉर्मेंस से, हमको भी अपना अच्छा काम करना है अभी। नो प्लीज थैंक यू guys। यार मैं अनफॉर्चुनेटली मैंने मिस की है। मैं परसों देखूंगा फिल्म घर में, क्योंकि मुझे निशिकांत और इरफान ने बताया कि बच्चे के साथ देखना बहुत ज़रूरी है। सो आई से बिकॉज ए फादर सन रिलेशनशिप फिल्म एंड बाकी जितने भी लोग निकले उन्हें बहुत पसंद आई है, तो परसों मैं ज़रूर देखूँगा। मैं इसी दिन आया। Nowadays there's a downfall going on in Bollywood because that movies getting pirated so before the release. What is your comment on that? पायरेसी शुड नॉट हैपन यार। और क्या वैसे डीप क्वेश्चन मत पूछ रात को मुझसे, आराम से सिंपल क्वेश्चन पूछ कोई। So second question to you was sir, there's a clash between Raees and Sir Kabil. What's going to be more? जैसा मैंने कहा थोड़ा सिंपल क्वेश्चन पूछ, रात को ऐसे मुश्किल क्वेश्चन मत पूछो। मुझे क्या लगता है मैं ऐसे बातें करूंगा तुझसे अभी? क्या चांस है इसका? चांस क्या बता दे मुझे। हैप्पी दिवाली एवरीवन, हैव अ गुड टाइम, हैप्पी। Thank you. बहुत अच्छी लगी एंड इट्स वेरी टचिंग, इट्स वेरी मूविंग, वेरी नाइसली मेड एंड
course, Irrfan Khan, I can't say enough for him. I think the way he expresses his eyes, I think they are so expressive that you can actually stay on him for very, very long and you can't get bored. And the chemistry between the kid and Irrfan sir's character is also amazing. It's very cute. And I love the ending also. So I just loved it. Thank you. मदारी तुमने क्यों नहीं देखी? मैं उनसे पूछना चाह रहा हूँ। तुम यहाँ खड़े रहे इतनी देर, आप भी देख लेते, आपको भी पता चल जाती। मैं कब दिखाऊँ आपको फिल्म? ओके, नहीं नहीं, आपको हम वैसे ही बुलाएंगे, आपकी स्क्रीनिंग करवाएंगे। बताइए क्या आपको कैसी लगी मदारी फिल्म, बताइए। ये प्रोड्यूसर इनसे क्यों पूछ रहे हो? तारीफ ही करेंगी यार। ये पर्टिकुलरली ये स्क्रीनिंग आज जो थी मेरे लिए बहुत मेरी हिम्मत बढ़ाई है। शाहरुख साहब आए, उनकी अभिजी आए और इम्तियाज़ साहब, सब लोगों ने आके, मतलब मुझे लग रहा है कि मेरे को पर्सनल उन लोगों ने फेवर किया है। एंड इतना ऑनेस्ट उन लोगों का रिएक्शन था। आई एम फीलिंग रिलीफ। मुझे लग रहा है कि मेरा जो इतना सालों की मेहनत थी वो कुछ ना कुछ का मुझे थोड़ा फल मिला है। तो मैं रियली सबके लिए मैं बहुत एहसानमंद हूँ जो लोग आए और उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ दिल से। इरफान साहब, अभी तो शुरुआत है, अभी शुरुआत है। ये पूछ ही रहे हैं कि आपका स्टाइलिश हो जा रहे हैं, आप ये जो बना रहे हैं, जो आपकी बीवी सुबह बैठ के आपको मतलब चट्टी वट्टी पैंट वही पहनाती है, पूछा था इन्होंने। स्टाइलिश होने में बुराई तो नहीं है ना कोई? मैं तो बचपन से स्टाइलिश हूँ यार। होमी सर के साथ मैं एक छोटा रोल कर रहा हूँ, जैसे फिल्म कर रहा हूँ, लेकिन मेरी इच्छा है आप लोगों को फिल्म बनानी, और ये इच्छा मेरी कल बहुत जागी, क्योंकि आप लोग जिस तरह से काम करते हो और जितना आप लोगों पर प्रेशर होता है। मैं कल एक बच्ची आई थी जो 11:30 बजे आई, मीडिया खत्म हो गया था, 9:30 बजे सबने फोटो ले लिए थे। वो बच्ची बेचारी, उसको बाइट चाहिए थी, वो 11:30 बजे आई और मैं उस वक्त थोड़ा किसी और मूड में था, और वो जिस तरह से मुझसे आग्रह कर रही थी कुछ भी दे दीजिए, आप कुछ लाइन भी बोल दीजिए, मुझे उसकी मजबूरी दिखी ना, मुझे लगता है इसमें एक फिल्म छुपी हुई है, और अगर कुछ और ना बनाए तो मैं ज़रूर बनाऊँगा आपके पास। और हाँ, आपको भी करेंगे। हाँ, ये भी थी और एक और थी। हाँ, मुझे याद है एक बार मैं जब इंजीनियर जूली के साथ फिल्म कर रहा था तो किसी बच्ची का पूना से फ़ोन आया और वो टाइम्स में कुछ व्यापार में काम करती थी, और मैंने जल्दबाजी में बोल दिया कि मुझे उतना तमीज़ है नहीं कि किसको हाँ बोलना है किसको ना बोलना है। मैंने कहा दे दूँगा। 4 दिन बाद उनका फ़ोन आया एंड वो लिटरली थका बहुत के रो रही है। तो आपने बोला था मुझे करने के लिए, आपने मुझे नहीं दिया इंटरव्यू, रोक नहीं दिया। धीरे धीरे मुझे समझ में आया कि जिस तरह का प्रेशर होता है वो उसमें कहानी है, बनाएंगे कभी। आएगा तो बताऊंगा मेरे भाई। इन्फर्नो आने वाली है अक्टूबर में, पहले वो देखिए, उसको हजम करिए, उसके बाद नया अनाउंसमेंट। मैं देखूंगा, मैंने अभी तक देखा नहीं। एंड मेरी उसके विशेष है पूरी। आई होप शी सक्सेसफुल एंड शी वहाँ जैसे उन्होंने जहाँ झंडे गाड़े वैसे हॉलीवुड में भी झंडे गाड़े। थैंक यू सो मच। मुझे भी इंतियाज भाई
मैं अभी इसको बोल रहा था कि अभी मैं एनालिसिस करने के औकात में नहीं हूँ। निशी की ये फिल्म देख करके मैं बहुत ही ज़्यादा हिल गया हूँ। इतनी ऑनेस्ट फिल्म, इतने सच्चे दिल से बनाई हुई फिल्म है ये। एंड आई वांट टू कॉन्ग्रेचुलेट एवरी पर्सन हु इज़ एसोसिएटेड विद दिस फिल्म. It's truly the right message. It's the most relevant message that any film can pass. And I'm very proud to stand here with Nishikant today. I've always been very proud of him, and today I feel really proud of this director. Thank you, this friend of mine. Irrfan, Shailaja, the writers of this film, the director of course, everybody needs special congratulations. I encourage everyone to see this film because it's the honest truth, as honestly told as possible. A lot of pains have been taken to make Madaari, and it has been made for all of you. Please watch this film and you will know what I mean. So Nishikant sir, any compliments from Mr. Bachchan, Shahrukh Bachchan sir, anything you would like to share with all? No, I just felt honored and humbled with the whole experience that Shahrukh was here, Amit ji was here, Imtiaz is here, and उनको सभी लोगों को अच्छी लगी है तो हाँ कोशिशें की हैं हमने ऑनेस्टली एंड जो दिल से बनानी थी बनाई है बाकी बाकी आई एम वेरी हैप्पी दैट दे ऑल लाइक द फिल्म थैंक यू सर थैंक यू All the hard work is paying off sir. And you have also taken precautions for piracy, so that is the leading issue for the day or the issue going on. Piracy, it's an unfortunate thing. It should have never happened in case of what has happened in past 2-3 films. But some other day we should be speaking about it. Right now, yeah, we are happy to have made a decent film, and such great people have come here to watch it, and they've liked it. I'm more than glad. I'm more than honored. I'm more than humbled. Thank you, sir. Thank you so much. So, will you see a combination of Nishikant and direction, a film based on that, I mean, a film made together? Sir, I don't know how two directors can make a film. It's very difficult. I can cast him. He also has this slight keeda for acting, I think. Keeda, okay. Thank you so much. Thank you. ये मनोज क्या